or this lecture is being organized by the forum. Friends, it is a reservation always, which is a bigger issue in our country. Be it a education, be it a job, or be it any kind of incentives to students. This is mainly because of the fact of the poverty in a country, one, and we want to upgrade our society and try to bridge a gap between the rich and poor. In order to achieve these objectives, almost all governments are somehow or the other experimenting through taxation laws and try to give some benefits. So far the income tax law is concerned, once upon a time we had a cash system of accounting. We also had an accrual system of accounting, and at the same time we also had an hybrid system of accounting. Knowing all these three systems, there would be a problem. So by and large, hybrid system of accounting is given a go by. Cash system of accounting is restricted to a particular class, and by and large, almost all trade industry businesses are required to adopt the accrual system of accounting, and which is a best system of accounting, no doubt about it. Therefore, with the help of accrual system of accounting, you can always judge what is going to be your correct income. And when it comes for paying the taxes, ideally, taxes should be paid only on a correct income which is being determined in accordance with the accrual system of accounting. But as I mentioned earlier, we want to achieve so many objectives with the help of taxation law. After adopting an accrual system of accounting, we came to know that state taxes will not be received in a time if we go for an accrual system of accounting only. Therefore, a provision was made in the income tax law saying that if the state taxes are not paid within a prescribed time or till the date of filing of the return, that will be disallowed and will be added to your taxable income and will be allowed as a deduction in the year in which you make the payment of taxes. So that was the first blow to the accrual system of accounting. Similar kind of amendment took place. Again, I would use the same word, a kind of a reservation. We wanted to provide a benefit to a small and medium enterprises. How do we achieve the objective? We have made a provision recently in the income tax law that if the dues for supplies or services, good supplies or services are not paid, either within 15 days from the date of supply or date of receipt of the invoice, or if there is an agreement within a period of 45 days, then that entire purchase of goods or services will not be considered as allowed as a taxable as your expense and will be added to your net income which you have determined in accordance with the
accrual system of accounting. Objective is laudable, no doubt about it. Because we want to protect a small and medium enterprises. If they are not paid in time by a large scale industries, by and large they will become a bankrupt. And it will have an adverse impact on the economy of the country. In order to achieve that objective, the provision is there. We also have a similar kind of a provision in the GST Act. That if you don't make a payment within 180 days of a supplier, your input tax credit will be reversed. And on that reversal, you will have to pay the interest and accordingly make good that interest. The objective is the same, just to help the MSME. However, while achieving the objective, when there is a good objective, naturally it is always associated with some kind of a side effects as well. Like a reservation has a good objective, but we have a side effects as well. Similar kind of side effects you could notice in these kind of provisions as well. And to explain that provision in a detail, as well as to explain you the side effect, how the provision will work, what will be the impact, and also to solve your queries. Today we have a very learned speaker, Mr. Naresh Jacotia, who is also associated with the VIA for quite a long time. And every Monday you will find his article in the Daily Hitwada Daily under the title Tax Talk. The objective of his writing that Tax Talk is to educate the taxpayers. And we are fortunate to have Mr. Jacotia as a speaker for the day. I would not like to stand between you and Mr. Jacotia, and therefore I would conclude my opening remark. And I do hope that at the end of this lecture or this program, you would be in a position to enrich in your knowledge about the provision, pitfalls, and impact of the provision. Thank you. Thank you, sir. Sir, with your kind words, I will request you to please welcome our own Naresh Bhai with a floral bouquet. It appears to be Naresh Bhai, but कुछ हमारे भी दिल से. Sir. I know you are very busy these days, even though you are giving time to VIA. He is coming directly from, he has already given 2 lectures from morning 11 to 1 and 2 to 4:30 around on the same topic, and now he is here. And no, Naresh Bhai, it is very good, and thank you so much for your timing. Still, we want to listen more about a bit about the provision from Naresh Bhai, Naresh Jacotia sir. But in between, I will ask Anil Parekh sir to give a brief upon what the industry thinks and what MSME concept is there and what should be done in this scenario. Please. Respected Dais, good evening all. I'm fully aware that we are here to listen the learned speaker today, but as directed, this provision which has come into Income Tax Act payment to MSME about allowance and disallowance will be dealt by the speaker. But when the provision came into the budget, many questions are there in the mind of the business community. How it will be implemented, what type of care we need to take, who is MSME, what type of document, whether registered, non-registered, payment made within 15 days, 45 days, written agreement, no written agreement, verbal commitment, back-to-back payment are there, goods purchased in the last week of March, not sold, lying in stock. What will happen if payment not made within 31st March?
or is paid within 15 days or 40 days, so on and so forth. There are many issues which needs clear understanding on this. The intention of the government to put this provision in income tax law is to improve the cash flows of MSME. Though the payment to MSME and outstanding, the act is as old as more than a decade or so, I think from 2006. 16. From 2006. From 2006, but it was only reporting in the accounts for the corporate entities. But now since disallowance has come under the Income Tax Act, the business community has to set its own processes so that there is no undue unwanted disallowance and need to pay higher tax. To understand and to clear our doubts, today we have learned speaker, Mr. Naresh Jakotia with us, and let us hear him. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Parekh sir. So the enthusiasm you can see, he is already ready to begin his journey or to enlighten us. Thank you, Naresh Bhaiya. Please. थैंक यू सचिन। बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जब ये प्रोग्राम में वापस अटेंड कर रहा था, क्योंकि आते से सबसे पहले तो आदत थी ये चेयर ऑक्यूपाई करने की। I was just looking for that chair, then I found it's there actually, and this speaker I have to be there actually. So I said it. Friends, what could be more glamorous and gracious dais it could be when we heard Chandak sir, Ashok Chandak sir, अपने आप में बड़ी पर्सनैलिटी है सर, बहुत बिजी था सर का शेड्यूल आज का, बट स्पेशल रिक्वेस्ट पे आई एंश्योर के सर इज आल्सो प्रेजेंस देयर, अनिल पारेख सर वन मैन आर्मी है अपने आप में, हिज प्रेजेंस इज देयर, बगड़िया सर इज देयर, आशीष दोशी सर अपने आप में बहुत बिजी शेड्यूल में से, यस टेक्नोलॉजी टाइम, Sachin, lot many efforts, Yudhesh bhai here, and lot many colleagues and professional colleagues are here actually. Nothing could be more gracious and I'm more fortunate to have the presence of you all for this session. Rajesh, I know हम लोग इसको प्रोग्राम को ऐसे करते हैं, लगभग एक 45 मिनट्स 50 मिनट्स के आसपास में मैं मेरा प्रेजेंटेशन पूरा कवर करता हूँ। प्रोबेबली जितने आप लोगों के डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जो प्रोबेबल इश्यूज आने वाले हैं, जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस होंगे, आई विल जस्ट ट्राई टू कवर इन माय प्रेजेंटेशन दैट पार्ट, एंड देन आफ्टर वी विल गिव द टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। तो जिसके जो भी है वो पार्ट को हम लोग कवर अप करते हैं। Before I start my presentation, let me put a star mark. This is my understanding of the law. It's subject to this terms and condition apply. It's my personal views. There are other views also possible. There are lot many litigations are going to be there as far as the new provision is there. और सबसे ज्यादा अगर रिसेंट पास में जो हमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करेगा वो 43BH होगा इन डेज टू कम। लॉट मेनी लिटिगेशंस, और हमेशा देखा गया है कि अपन एक व्यू अडॉप्ट करते हैं, अपने व्यूज बनाते हैं। डिपार्टमेंट हैज देयर ओन व्यूज, they have their own perspective to see the things actually, so they are going to find out something new in this, and lot many issues are going to be there. This is my personal opinion. Keep yourself updated at VI Tax and Corporate Law. We regularly keep organizing the program, keep attending, we will keep on discussing this same part again and again. ये एक्ट एक जब ये नया 43BH आया लॉ को, तो आए हुए 43BH को इंट्रोड्यूस किए हुए लगभग एक साल हो गया। 2023 बजट में ये प्रपोजल्स आया था, और हितवाद में जब टैक्स टॉक का कॉलम था, नॉर्मली जो पहला इशू कवर करता हूँ आफ्टर दी बजट, उसमें बजट हाईलाइट कवर करता हूँ, लेकिन 2023 में इमीडिएटली आफ्टर दी बजट मैंने जो कॉलम कवर किया वो सेक्शन 43BH कवर किया था मैंने। वो इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत फीडबैक आएंगे, बहुत रिएक्शंस आएंगे, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आई उस समय उसकी, क्योंकि जब तक वो आग नहीं लगती, लास्ट मोमेंट नहीं आता, तब तक माहौल नहीं बनता वो चीज का, और तब तक ये प्रोविजंस की इतनी अवेयरनेस भी क्रिएट नहीं हुई थी। एंड देन एट द लास्ट मोमेंट, अब जब चूंकि अपने उसमें टाइम नहीं है, तो इट हैज पिक्ड अप दिस द रिक्वायर्ड हीट फॉर दिस सेक्शंस, एंड वी आर हियर फॉर दैट। एक्चुअली देखा जाए द प्रोविजंस ओरिजिनेट होता है MSME एक्ट से। दी MSME एक्ट एक वो कहना था कि मोदी है, मोदी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, वो नए नए प्रोविजन ला रही, बहुत रिस्ट्रिक्ट करते रही है, क्या वो डिसाइड करें कि हम लोगों ने बिजनेसेस कैसे करने हैं, हमने कैसे करना है, हम लोगों के म्यूचुअल टर्म्स है,
हमने जो डिसाइड किया वो छोड़ के आप ये बता रहे हो कि इतने दिन में पेमेंट करना है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गलत हो रहा है। लेट मी थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं, हम लोग का बैकग्राउंड समझेंगे तो इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे पूरी चीज को कि ये लॉ क्या है और क्या करना है। एमएसएमई एक्ट 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था, when मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वाज देयर, दे रिकॉग्नाइज्ड एमएसएमई आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो एमएसएमई का सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, और उसमें एक बहुत बड़ी हड़ताल थी कि एमएसएमई को पेमेंट नहीं आता, उनका कभी डोमिनेटिंग टर्म्स में नहीं रहते थे, वो इंश्योर नहीं कर पाते थे कि सामने वाला बायर जो उनको टाइम पे पेमेंट करे, हमेशा दबके रहना पड़ता था। सो 2006 में एमएसएमई एक्ट आया, और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली एमएसएमई एक्ट का ही पार्ट था, जो आज कुछ पार्ट उसकी सिर्फ 3 लाइनें इनकम टैक्स एक्ट में आई है, और हम लोग पूरे नेक्स्ट 1 घंटे 2 घंटे या जो डिस्कस करेंगे ये सिर्फ 3 लाइनों का डिस्कशन है। जो एमएसएमई एक्ट है उसको वहां से ओरिजिनेट होता है। सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में तो ये किया है कि आपने एमएसएमई एक्ट के हिसाब से अगर पेमेंट नहीं किया तो आपको एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ये 3 लाइनें एमएस इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है, ठीक है। अब इसलिए समझना जरूरी है कि एमएसएमई एक्ट क्या होता है। एमएसएमई एक्ट 2006 में आया है, और 2006 में जब ये एक्ट आया तो उस समय उसमें 2006 में उन्होंने बोला ये कानून लागू होगा माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वी ऑल नो, अभी व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन काफी आए हैं, वी ऑल नो माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन से है, 1 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 50, 10 करोड़, 50 करोड़ एंड अबव दैट। तो माइक्रो एमएसएमई एक्ट में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 3 कवर है, एंड द एक्ट अप्लाइज टू दिस पार्ट। अगर ये पीपीटी छोड़ दे तो हम लोग ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन हो पाएगा। सचिन वैसे कर ले। एक बार से राजेश वापस। अब एक छोटा सा किस्सा है कि 2006 में कानून आया तो लोगों ने उसको फॉलो क्यों नहीं किया। एक लड़का था, एक लड़की से बहुत प्यार करता था वो, तो उसको समझाया गया घर में, सबसे पहले उसके भाई ने समझाया कि यार वो भाई, लड़के के भाई अच्छे नहीं है, गुंडे है, बदमाश है, वो लड़की को तू छोड़ दे। लड़का नहीं माना। लड़की की बहन ने समझाया कि वो लड़की अच्छी नहीं है, उस लड़की को छोड़ दे, वो अच्छी लड़की नहीं है, अपने लायक नहीं है, उसको छोड़ दे। लड़का फिर भी नहीं माना। लड़के के बाप ने समझाया उसको कि यार उसका परिवार अच्छा नहीं है, उनका बैकग्राउंड कभी भी अच्छा नहीं है, तो वो लड़की को छोड़ दे। बिल्कुल अच्छी लड़की की माँ ने समझाया, उनका लड़की के माता का भी प्रोग्राम ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पूरे परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो लड़की को छोड़ दे बोले। लड़का नहीं माना, लड़का चलते रहा। कुछ समय चला, 1 महीने 2 महीने बाद लड़की के भाई को पता चला, उसने लड़के को उठाया, उसकी धुलाई कर दी, हाथ पैर सब तोड़ दिया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, फ्रैक्चर वगैरह पूरे लग गए, प्लास्टर वगैरह पूरा हो गया उसका। और फ्रैक्चर होने के बाद में फिर 2 महीने 3 महीने लगे ठीक होने में। ठीक हुए तो घर में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जुल्फी भाई सब लोगों को बुलाए। प्रोग्राम होने के बाद में लड़के में घर, लड़के के भाई बहन सब साथ में बैठे, बताया हमने देखो इतने बार बोला, मैंने बोला, समझाया, तू नहीं छोड़ा। भाई ने समझाया, बहन ने समझाया, माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, तूने उस समय क्यों नहीं छोड़ दिया, पहले ही छोड़ देता तो ये नौबत नहीं आती। लड़के ने सबकी बात सुनी और फिर कहा, समझाया जरूर था बोले आपने, लेकिन वो तरीके से नहीं समझाया जिस तरीके से उसके भाई ने समझाया मुझे। प्रोविजन 2006 का था, आज तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाया, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन में पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि अब ये समझाने का तरीका अलग है। सिर्फ इनकम टैक्स में जब ये पार्ट आया तब पीपल स्टार्ट फॉलोइंग, और एमएसएमई एक्ट पिछले 2006 से मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा, पिछले 1 साल में कम से कम 20 बार एमएसएमई एक्ट पढ़ा, क्योंकि अब इसके रिपरकशन बहुत ज्यादा है। तो वो एमएसएमई एक्ट अब देखना, अब समझना जरूरी है। सब गवर्नमेंट का अपना तौर तरीका होता है काम करने का, उसको फॉलो कराने का, तो ये अपना तौर तरीका था। जब तक इनकम टैक्स में नहीं आया था तब तक उसका इंपॉर्टेंस भी रियलाइज नहीं हुआ था, तो उसके साथ में एमएस इनकम टैक्स एक्ट में भी प्रोविजन है। एमएसएमई एक्ट कहता है, अब इसमें एमएसएमई एक्ट का जो मेन पार्ट है वो कहता है, आप जब भी कोई किसी से परचेस करते हो, अगर वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, स्मॉल एंटरप्राइजेस है या मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो आपको जो पेमेंट करना है एज पर दी म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स उसको पेमेंट करना है। अगर कोई म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स नहीं है तो आपको 15 दिन में पेमेंट करना है।
अगर आपका एग्रीमेंट में रिटर्न टर्म्स 15 दिन से ज्यादा का है तो आप वो हिसाब से पेमेंट कर लीजिए, बट इन एनी केस नॉट मोर देन 45 डेज से ज्यादा का आपने पेमेंट नहीं करना है। दिस इज व्हाट एमएसएमई एक्ट सेज, ठीक है। यानी अगर मेरा म्यूचुअल टर्म्स है, मैंने कोई माल सचिन को बेचा और मैंने बिल में लिख दिया, मैंने अपने टर्म्स थे कि मैं इसको 10 दिन में पेमेंट करूंगा, उस केस में सचिन को 10 दिन में पेमेंट करना जरूरी है। उस केस में 15 दिन का भी क्लॉज नहीं लगेगा, उस समय 10 दिन में पेमेंट करना जरूरी है। अगर उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा कि पेमेंट कब देना है, तो उस केस में पेमेंट करना 15 दिन में जरूरी है। अगर उसमें यह लिखा है मैंने 40 दिन में करना है, तो इनको 40 दिन में पेमेंट देना पड़ेगा। अगर लिखा है 60 डेज में पेमेंट करना है, तो वो केस में इनको पेमेंट करना जरूरी है 45 डेज में। दिस इज प्रोवाइडेड इन एमएसएमई एक्ट, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है माल को लेके या सर्विसेज को लेके, उस केस में जिस दिन वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है उससे बाद में ये 15 दिन या 45 दिन काउंटिंग में होंगे। दिस इज व्हाट एमएसएमई एक्ट प्रोवाइड, राइट। अब एमएसएमई एक्ट में कुछ और क्या कानून है, मैं एक 2-4 मिनट में कवर अप करता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक है कि आपको पेमेंट कब करना है, ये बताया गया है। देन उसने बोला है अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट 3 times द रेट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। बैंक रेट जो आरबीआई बोलता है उसके 3 गुना रेट देना है। अराउंड आरबीआई का जो रेट है अभी 6% के आसपास का है। यानी अगर मैं किसी को माल सप्लाई करता हूं एज अ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और ये मुझे पेमेंट नहीं करते हैं, इन दैट केस ही हैज टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%, 3 times द बैंक रेट, जो भी बैंक रेट होता है उसमें ब्याज देना है। एंड दैट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू पे द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। देन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी एक्ट में किसी में का भी ऑडिट होता है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें रिपोर्ट करे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को कितना अमाउंट देना बाकी है, कितना अमाउंट इस साल में दिया गया है, लेट दिया गया, कितना इंटरेस्ट दिया है, कितना इंटरेस्ट देना बाकी है। ये सब रिपोर्टिंग मैंडेटरी है एमएसएमई एक्ट में, यानी ऑडिटर्स को भी रिपोर्ट करना जरूरी है। और एमएसएमई एक्ट बोलता है कि जितने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनको एमएसएमई एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई माइक्रो स्मॉल एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो कोई पेनल्टी नहीं दी है, मतलब प्रोविजन इज देयर कि उसको रजिस्ट्रेशन करना है, अगर नहीं करता है तो पेनल्टी इज नॉट देयर। पेनल्टी मेनली 2 सेक्शन की है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो उसको तो पेनल्टी उसकी प्रिस्क्राइब की भी है। एंड देयर इज अ सेपरेट कमिटी, यानी अगर अभी देखा जाए 2006 के बाद में काफी लोग यहाँ पे अवेलेबल होंगे, एमएसएमई से कभी पेमेंट नहीं आता है, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पर्सन, और एमएसएमई की एक सेपरेट कमिटी है वो डिसीजन पास करती है एंड उससे पेमेंट ये रिकवर कर सकते हैं। अब अगर इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन लाया गया है कि अगर आप ये एमएसएमई एक्ट का वायलेशन करते हो, टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और कुछ प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में कि आपको अगर पेमेंट नहीं करते हो या कुछ कम करते हो या कमी बराबर नहीं हो पाता है तो आपको डिडक्शन 30% डिसअलाउ होगा, कई जगह 20% डिसअलाउ होगा, लेकिन ये केस में 100% अमाउंट डिसअलाउ होगा। 43B एच सेक्शन क्लॉज है, इसके पहले ए बी सी डी ई एफ जी भी है। ए बी सी डी ये जो बाकी क्लॉजेस है ये पहले से है, एच सिर्फ इस साल आया है। ए बी में जैसे अब इसके पहले जीएसटी, गवर्नमेंट के टैक्स, गवर्नमेंट के ड्यूज है, ये भी आपको टाइम पे पेमेंट करनी जरूरी है। अगर ये पेमेंट नहीं करते हैं तो ये एक्सपेंसेस भी डिसअलाउ होता है। लेकिन ए से लेके एस तक नॉर्मली अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अगर पेमेंट कर देते हो तो उसका डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन 43B एफ इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप ये ड्यू डेट पे नहीं भरते हो, यानी एग्रीड रेट और 15 डेज और 45 डेज, अगर इसके बीच में आप पेमेंट नहीं करते हो, इस समय तक पेमेंट नहीं करते हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी इफेक्टिवली देखा जाए, अगर मैंने किसी से परचेस किया, 31 मार्च को परचेस किया, मेरे बुक्स में 25 डेबिट कर दी मैंने, उसको पेमेंट करना है मैंने, ठीक है। अब मैंने पेमेंट, मेरे पास अगर राइटिंग में एग्रीड नहीं, कोई टर्म्स नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट करना है, तो मुझे 15 अप्रैल तक पेमेंट करना है। लेकिन अगर मैं 16 अप्रैल को पेमेंट करता हूं तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मुझे इस अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मुझे जो डिडक्शन मिलेगा ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। यानी आपके इनकम टैक्स रिटर्न जिस दिन आप भर रहे हो उस दिन तक का तो भले ही आपने पेमेंट कर दिया हो, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू गेट दी डिडक्शंस,
ठीक है, यानी आपको पेमेंट विद इन ड्यू डेट करना बहुत जरूरी है फॉर दिस पर्पस। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शंस आई विल कवर। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कहां से चलेगा कि हमने पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो नॉर्मली चेक करता नहीं है, 1 या 2-3% केसेस इसका टीम लेता है, बाकी तो कहीं से कोई पता नहीं चलता है, तो पता कहां से चलेगा। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के ऊपर डाली गई है। वो जब टैक्स ऑडिट करते हैं, यहाँ पे जब भी ऑडिट करते हैं, उस ऑडिट रिपोर्ट में उनको रिपोर्ट करना पड़ता है कौन सा अमाउंट है जिसका पेमेंट टाइम पे नहीं गया है, और 43B एक्ट में अमाउंट डिसल होता है। तो जो भी ऑडिटर रहेगा उसकी कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिपोर्ट करने की कि जहां पे ये वायलेशंस है, सो कहीं ना कहीं से ये रिपोर्ट होना है। सेकंड है कि अगर ऑडिट में नहीं है, जैसे 10 करोड़ के कुछ केसेस है, वहां पे 5 करोड़ यानी 2 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से नीचे है, तो वहां तो ऑडिट कंपल्सरी नहीं है। अगर 95% से ज्यादा टर्नओवर डिजिटल मोड में हो जाता है, तो ये केस में ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, तो एसएससी तो खुद अपना रिटर्न भर सकता है, तो क्या वो डिडक्शन क्लेम करके फाइल कर सकता है। देखिए, मोस्ट ऑफ दी जितने कंप्लायंसेस है इनकम टैक्स के, गवर्नमेंट रिलाई ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशंस। आप जो डिक्लेयर करते हैं उस पर रिलाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो मांगते नहीं है कभी भी। आपने एलआईसी की डिडक्शन क्लेम करते हैं, हाउसिंग लोन का डिडक्शन क्लेम करते हो, या कोई भी डिडक्शन क्लेम करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डजंट आस्क फॉर एनी ऑफ द डिटेल्स कि ये दीजिए। लेकिन जब केस सिलेक्ट हो जाती है, स्क्रटनी या वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन में सिलेक्ट होती है, उस समय वेरीफाई करके वो उस चीज को कॉल ऑफ करता है और फिर वो डिसअलाउ करता है उस केस में। ठीक है ना, तो जब भी केसेस आएंगे तब वेरीफाई करेंगे, दे रिलाई ऑन योर सेल्फ डिक्लेरेशंस। और आज की तारीख में द कॉस्ट ऑफ पेनल्टी एंड फाइन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ टैक्स। अगर आपको टैक्स 100 रुपए लग रहा है तो पेनल्टी 200 रुपए की है, साथ में फ्री 100 करोड़ की कोठी जेल भी दे रहे हैं आजकल वो। तो वो सब चीजें अलग हो रही है, इसलिए इसको ये तरीके से लीजिए कि ये तो कंप्लायंस करना ही करना है, ये मान के चलिए कि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा है, इतना लोगों को इफेक्ट होगा तो गवर्नमेंट ये कानून वापस ले लेगी। बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल वापस नहीं होने वाला है। 2006 में कानून आया है, अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ब्लैक मनी एक्ट भी ऐसा ही हुआ था, 2004 में कानून बना था ब्लैक मनी डिमोनेटाइजेशन के पहले वो कानून को एनफोर्स किया गया। सेम ये एमएसएमई एक्ट है, 2006 से लागू है। इनकम टैक्स एक्ट में तो प्रोविजन अभी आए हैं, तो आप ये दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट इसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। देयर इज ओनली वन ऑप्शन कि इसको कंप्लाई करो, इसको चेक करो। वी हैव एनफ टाइम विथ अस। ऑफ कोर्स लॉट मेनी हर्डल्स आर देयर, बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारी डिफिकल्टी है, बट वी डोंट हैव एनी चॉइस but to comply with the law and department will get to know and there are lot many areas। हम लोग अगर टाइम परमिट करेगा लास्ट में तो उसको कवर अप करता हूँ कि कहां से कैसे पता चल सकता है डिपार्टमेंट को कि ये पेमेंट आपने ड्यू डेट पे नहीं किया है, ये कहां से पता चल सकता है। अब मैंने बार बार इसमें कहा कि आपको जो पेमेंट करना है या तो एग्री टर्म्स या 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट करना है। ठीक है, अब ये एग्री टर्म्स कहां से पता चलेगा। ठीक है, सचिन से मैंने मान लिया, इन्होंने बोला मेरे को 3 महीने में पेमेंट दे देना, तो ये रिटर्न एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है। व्हेनेवर वी से अबाउट द एग्रीमेंट, तो हम मानते हो स्टैम्प पेपर में पूरा पेपर लगा के पूरा डॉक्यूमेंट साइन होता है, तो क्या वैसा साइन होना जरूरी है। तो इज इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट इन दैट वे। गवर्नमेंट ने पूरे एमएसएमई एक्ट इनकम टैक्स एक्ट में कहीं नहीं बोला रिटर्न एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। तो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या बोलती है, वो डिपेंड करेगा कि आपका रिटर्न एग्रीमेंट क्या है। यानी अगर आपके बिल में लिखा है कि पेमेंट इसका इतने दिन में करना है, दैट विल टेंटामाउंट टू रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है, या डिलीवरी मेमो में लिखा है या परचेस ऑर्डर में लिखा है या कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है कि इतने दिन में पेमेंट करना है, तो वो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रिटर्न एग्रीमेंट एंड दैट विल बी रिलेवेंट। अगर वो नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 दिन में पेमेंट करना है। ठीक है, और अगर उसमें 2 दिन लिखा है, 1 दिन लिखा है, तो आपको पूरा उस समय के हिसाब से पेमेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खैर ये पहले शुरुआत में जब ये चालू हुआ इश्यू तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, फिर बाद में सब जगह व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन हो गया कि ट्रेडर्स आर नॉट कवर्ड बाय दैट। ठीक है, यानी अगर आप कोई सिर्फ ये आपकी जो परचेसेस है, आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, आपकी परचेसेस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से है या नहीं है। अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से तो आपको पेमेंट करना है। अगर आपने ट्रेडर से लिया, आप पेमेंट अपने कन्वीनियंस से कर लीजिए, इट डजंट मेक कोई डिफरेंस, आराम से भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर मीडियम एंटरप्राइजेस से किया है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपने लार्ज एंटरप्राइजेस से किया तो भी नहीं फर्क पड़ेगा। आपने किसी ऐसे व्यक्ति से परचेस किया है जो रजिस्टर्ड नहीं है एमएसएमई में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको 2 कैटेगरी ऑफ द पीपल है, माइक्रो एंड स्मॉल, सिर्फ उनसे अगर परचेस करते हो तो ही कवर होगा। मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज एंटरप्राइजेस बिल्कुल कवर नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल है, हम लोग लास्ट में इस एग्जांपल को कवर अप कर देते हैं ये पार्ट को कि वो कैसे
ऑपरेट करेंगे या कैसे होगा। मैंने कहा है कि अगर 15 दिन 45 दिन या एग्री टर्म्स आपको उस समय पेमेंट करना है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो उस केस में आप पेमेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बाद करना है। यानी मैंने 1 तारीख को सचिन से माल खरीदा, 2 तारीख को माल मुझे मिल गया, ठीक है, मेरे को 2 तारीख से 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें डिस्प्यूट रेज कर दिया और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ 1 महीने बाद, तो मेरा एग्रीड रेट 15 दिन और 45 दिन रिकॉग्नाइज होगा आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। उसके पहले वो रिजॉल्व, यानी मेरे को उस समय बिलिंग डेट से पेमेंट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है मैं डिस्प्यूट कब रेज कर सकता हूं। मैंने 1 अप्रैल को माल खरीदा इनसे और मेरे को अचानक 15 मई को ख्याल में आया ये इसमें प्रॉब्लम है, तो क्या मैं 15 मई को डिस्प्यूट रेज करता हूं अगर, तो चल जाएगा। एमएसएमई एक्ट बहुत, यानी अगर देखा जाए एमएसएमई एक्ट कितना सुपर और अच्छे से ड्राफ्ट किया है, यानी प्रोबेबल जो आप सोचते होगे डिस्प्यूट विद सॉल्यूशन हम लोग ऐसा ऐसा कर लेंगे, उसके पहले उन्होंने उसमें इश्यू डाल के रखा कि बाद में आना मत हमारे पास पे। उन्होंने हर चीज के लिए फिक्स चीजें दे दी। उन्होंने दे दिया रिटर्न डिस्प्यूट होना चाहिए पहली चीज, और वो डिस्प्यूट 15 दिन के अंदर में फाइल होना चाहिए। यानी मैंने इनसे माल लिया, 1 अप्रैल को माल खरीदा और मैंने इनको बताया ही नहीं, मैंने माल देखा ही नहीं सपोज, ठीक है, और मैं उसको देखता हूँ 1 महीने बाद, और 1 अप्रैल को माल लिया, 1 मई को मैं बताता हूँ आपका माल अप टू दी क्वालिटी नहीं है और माल में इट डजंट मीट माय स्टैंडर्ड माय रिक्वायरमेंट, तो उस समय में वो डिस्प्यूटेड क्लेम नहीं माना जाएगा। यानी मेरी ड्यू डेट वाज 15 दिन 45 दिन और एग्रीड डेट एज द केस में भी वो रहती है। यानी अगर डिस्प्यूट भी रेज करना है तो इट हैज टू बी अ रिटर्न डिस्प्यूट नॉट ओरल डिस्प्यूट। मैंने फोन बोल दिया, मैंने बता दिया, तो वो पार्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। इट हैज टू बी अ रिटर्न डिस्प्यूट्स एंड रिटर्न के साथ में 15 दिन के अंदर में दैट डिस्प्यूट हैज टू बी रेज्ड। यानी अगर आप 45 दिन के बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद में अगर डिस्प्यूट रेज करते हो तो वो नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन आता है, एमएसएमई सेलर है, यानी मीडियम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को सेल करता है, तो ये प्रोविजन लागू होता है मुझे, क्या मेरा भी एमएसएमई होना जरूरी है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। मैं तो टेलर्स हूं, मेरे को लागू नहीं होगा, भूल जाइए। आप माइक्रो हो, आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, आप नहीं हो, आप ट्रेडर्स हो, आप कमीशन एजेंट हो, आप कोई भी रहे, ठीक है, आप जिससे माल खरीद रहे हो सिर्फ आपको वो पार्ट देखना है, वेदर माइक्रो और स्मॉल है या नहीं है। मेरा स्टेटस इज इमटेरियल, मैं लार्ज एंटरप्राइज हूं, मैं लिस्टेड कंपनी हूं, डजंट मेक अ डिफरेंस। मेरे को सिर्फ बेचने वाला है उसको देखना है, वेदर वो जो बेचने वाला है वो माइक्रो और स्मॉल है या नहीं है, वो देखना है मुझे बस, ठीक है। सो अप्लीकेबल सबको है। मैं बैंकर हूं, मैं बैंक चला रहा हूं, मेरी बैंक को भी है, सोसाइटी को भी लागू है ये वाला। अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है, प्रोप्राइटरी फॉर्म है, कंपनी है, टू ऑल इज अप्लीकेबल। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो मैं आई विल टेल यू क्या हम लोगों को भी ये लागू होता है अगर हम लोग माइक्रो एंड स्मॉल से परचेस करते हैं। बट चैरिटेबल ट्रस्ट अगर है तो उसको लागू नहीं है, क्योंकि इसकी इनकम जो है चैरिटेबल ट्रस्ट की, अगर बिजनेस इनकम नहीं है, अदर सोर्स की इनकम नॉर्मली रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो उस केस में चैरिटेबल ट्रस्ट को ये लागू नहीं होगा। अदरवाइज एवरीवन इज कवर्ड बाय द। अब ये पता कैसे चलेगा कि वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है या नहीं है? ये हाउ वी विल कम टू नो। हमने बिल लिया तो बिल के ऊपर में अगर उसने लिखा है उद्यम आधार नंबर अगर लिखा है तो प्रिजम्पशन है, ये तो कंफर्म है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो उस केस में हम लोगों को फर्दर चेक करना पड़ेगा वो माइक्रो और स्मॉल है या नहीं है। उद्यम आधार की साइट पे दी फैसिलिटी जुल्फेश भाई ने दिया कि वो फैसिलिटी उसमें इंट्रोड्यूस की है, यू कैन वेरीफाई। वो उद्यम आधार नंबर आप डालते हो तो ये वेरीफाई कर सकते हो उसका स्टेटस क्या है, तो उसमें बता देगा इट्स अ माइक्रो एंटरप्राइजेस, इट्स अ स्मॉल एंटरप्राइजेस, इट्स अ मीडियम एंटरप्राइजेस, और इट्स रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस एज अ ट्रेडर्स फॉर दैट लोन पर्पस, ठीक है, उसके अंदर बता देता है। अगर सपोज उसमें उद्यम उन्होंने अगर नंबर नहीं डाला है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला है, इन दैट केस इज इट कंपल्सरी फॉर अस टू चेक कि वेदर ये एमएसएमई है या एमएसएमई नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस। अब देखिए आज तक के इतने सालों के अनुभव ये बताते हैं जब भी इनकम टैक्स में कोई केस आती है तो वो पूरा ऑनर्स जो है वो आप पे शिफ्ट करते थे, आप प्रूव करो कि ये एमएसएमई नहीं है, ठीक है। सिंपल सबमिशन है उस केस में, हमारे पास में बिल की कॉपी एक बार चेक कर लेना जरूरी है, और एक सबमिशन दे दो ये एमएसएमई रहता तो यहां नंबर डालता था, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी बेनिफिट, लॉट मेनी इंसेंटिव्स फॉर हिम, तो ये नंबर डाल देता था इसमें। तो इसमें नंबर नहीं डाला इसलिए वी कैन प्रिज्यूम दैट ही इज नॉट रजिस्टर्ड एज एमएसएमई,
ठीक है, तो एक पार्ट हो जाता है। लेकिन जहां जहां आप परमिट करता है या जहां अपने से चलते हैं या जहां हम बुला सकते हैं, तो उससे लेटर भी बुला लीजिए कि ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, या फिर उसको एमएसएमई एक्ट लागू नहीं होता है, या एमएसएमई में वो रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडर है, ये बुला लीजिए। ठीक है, अगर उसका वो नंबर नहीं दिया है उसमें, अगर नंबर दिया है देन व्हाट, तो एक तो प्रिजम्पशन है कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, देन इधर यू नीड टू चेक दिस साइट, साइट चेक करो और वहां से वेरीफाई कर लीजिए। अब ये एक्चुअल में साइट चेक कर लिए तब तो हमको पता चल जाएगा। देयर आर द चांसेस, शायद हो सकता कुछ लोग ये चाहे कि भैया हम साइट कितने देखे और क्यों देखे, या कई बार रजिस्टर्ड भी है बट सामने वाला एनफोर्स नहीं करना चाहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है मैं उससे लेटर ले लूं कि उसने ट्रेडिंग करके रजिस्टर्ड किया है। एक्ट में कोई प्रोविजन ये नहीं दिया कि आपको कंपलसरी है ये चेक करना साइट पे जाके। इट्स अ फैसिलिटी दैट हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट कि एमएसएमई के साइट पे आप उद्यम आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि इसका रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो अगर वो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर अगर देता है तो यू कैन चेक इट। अब हो सकता है सामने वाले ने नंबर नहीं दिया, उसका पैन नंबर है, जीएसटी नंबर है, उससे आप चेक नहीं कर सकते हो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। वो चेक करने का कोई प्रोविजन नहीं, यानी उसका नंबर दिया देन यू कैन चेक इट फॉर द ट्रेडर्स, मीडियम, लार्ज, स्मॉल एंटरप्राइजेस या नहीं है। लेकिन अगर वहां नहीं दिया तो यू कैन नॉट चेक बाय एनी वे, लेकिन अगर दिया हुआ है तो यू कैन चेक। बट स्टिल क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो बहुत सारे लोग सर ये बोल के आ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है मैं उनसे लेटर ले लूं और मेरा काम हो जाए, ही इज रजिस्टर्ड एज अ मीडियम एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब मैंने तो काटा नहीं और मैं पेमेंट नहीं किया और सामने वाला भी रेडी है, तो क्या मैं लेटर ले लूं तो चल जाएगा? मेरे ख्याल से एक्ट में अभी तक तो कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। बेटर है हम लोग अवॉइड करें, लेकिन मतलब अवॉइड करें कोई मेल प्रैक्टिसेस करना। लेकिन अगर वो लेटर रहता है मेरे ख्याल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या उनके असेसमेंट पर्पस में कई बार वो पर्पस सर्व हो सकता है कि यू आर रिलाइंग ऑन द स्टेटमेंट गिवन बाय द सप्लायर कि वो रजिस्टर्ड नहीं है एंड दैट वी आर मेकिंग द पेमेंट। तो एक वो पॉसिबिलिटी मुझे कुछ हद तक लगती है कि वी कैन गो अहेड विद दैट एक्चुअली। ठीक है, तो एक ये है। अब यानी लेकिन यूटिलिटी में भी एक रिस्ट्रिक्शंस है, आप उसको कितने लोगों का एमएसए में रजिस्ट्रेशन चेक करोगे। तो देयर आर लॉट मेनी कंपनीज दे आर कमिंग आउट विद अ सॉफ्टवेयर कि आप उसमें 50, 100, 200, 500 जितने भी आपके नंबर है, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उसमें डाल दीजिए, तो उसके अंदर में से वो पूरी लिस्ट दे देगा कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है और कौन दूसरी मीडियम एंटरप्राइजेस है, ये सब उसके अंदर दे देता है। ठीक है, अब यू में रिकॉल के गवर्नमेंट ने खुद ने भी एक 2021 में सर्कुलर उन्होंने इशू किया था, उन्होंने एडवाइस किया कि जिन्होंने भी एमएसए में रजिस्ट्रेशन किया है वो अपने बिल में कोट करे। एज ऑफ नाउ इट्स नॉट मैंडेटरी, तो किसी ने कोट नहीं किया तो दैट बेनिफिट कुड बी देयर फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव। लेकिन हो सकता है कि इन डेज टू कम गवर्नमेंट उसको मैंडेटरी भी कर देगी कि यू आर इट्स कंपल्सरी टू कोट द एमएसएमई नंबर इन द बिल। अभी तक फिलहाल ये मैंडेटरी नहीं है। मैं एक्चुअली कुछ इश्यूज कवर अप कर रहा हूं जो हमारे इसमें डे टू डे लाइफ में आएंगे, देन आफ्टर वी विल कवर अप द सॉल्यूशन फॉर दैट। यानी अब आज की तारीख में है कि आप जो भी परचेसेस करें इट्स कंपनी से कंपल्सरी, जैसे केवाईसी करते हैं वैसे केवाईएस करना भी जरूरी हो गया, नो योर सप्लायर। ठीक है, अब इश्यूज आएंगे कि आपने मैंने आज 31 मार्च को इनका माल परचेस किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना रिटर्न जो भरना था रिटर्न भर दिया, अमाउंट डिसअलाउ कर दिया। अब हो सकता है कि डिस्प्यूट्स बाद में आ जाए, 2 साल बाद में आ जाए, 1 साल बाद में आ जाए कि मेरे को इन्होंने जो दिया था उसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने की थी और इनकी कंडीशन थी कि माल वापस ले लेंगे ये। ठीक है, मैंने 31 मार्च को माल परचेस किया, 30 सितंबर को मैंने रिटर्न भरना था, पेमेंट तो किया नहीं मैंने, तो मैंने उसका डिडक्शन भी क्लेम नहीं किया, एडबैक कर दिया मैंने मेरे रिटर्न में, और मैंने इनकम टैक्स में जो ड्यू था इनकम टैक्स भर दिया मैंने। अब 6 महीने बाद में वो उसकी एक्सपायरी डेट हो गई कोई चीज की, तो मैंने वापस माल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? अब कोई लॉ में तो हर चीज प्रोवाइड नहीं होती है, नॉर्मल जो बिजनेस प्रैक्टिसेस प्रिवेल करते हैं, कॉमन सेंस प्रिवेल करता है, वो अप्लाई होगा ऐसे केस में। तो ये होगा कि मेरे को अगले साल जब मैंने माल वापस कर दिया, आई विल बी इट विल टेंटामाउंट टू पेमेंट ओनली, द रिटर्न ऑफ गुड्स विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन सच केसेस। एक्चुअली मैंने जो प्रोबेबल इश्यूज आ सकते थे वो सब मैंने कोशिश की कवर अप करने की, ताकि क्वेश्चन आंसर में मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड, और बाद में हम लोग फर्दर वी कैन बाकी चीजें हम लोग ले सकते हैं इसमें। पूरे मैटर में एमएसएमई में अब जो ये नया कानून जो लागू हुआ है, अगर आप 31 मार्च के पहले पेमेंट कर देते हो तो कोई भी चीजें कोई डिसअलाउंस होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, यानी आप 31 साल में कभी भी परचेस करो आप, नॉर्मली तो एग्रीड पीरियड 15 दिन और 45 दिन का प्रोविजन है कि उसमें पेमेंट करना है। बट इन एनी केस अगर आपने उसको 31 मार्च 2024 तक अगर पे कर देते हो तो आपका कोई भी डिसअलाउंस नहीं होने वाला है इस केस में। ठीक है,
अब ओपनिंग क्रेडिटर्स का क्या होगा 31 मार्च 2023 को, ठीक है। कानून जरूर था उसके पहले भी कि आपको 15 एग्रीड पीरियड 15 दिन 45 दिन एमएसएमई एक्ट बोलता है देना है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं था। तो 31 मार्च 2023 को जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो अमाउंट अगर आप नहीं भी पे करते हो तो उसका कोई डिसअलाउंस नहीं होने वाला है, ठीक है। अब एमएसएमई एक्ट में मैन्युफैक्चरर कवर होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स कवर होते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दे आर रजिस्टर्ड, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उन्होंने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपने लेकिन माल परचेज किया, यू नो कि ये मैन्युफैक्चरिंग है उसका। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो ही वो प्रोविजन अप्लाई होगा, अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। अब कोई प्योर ट्रेडर्स है कि वी नो कि इसने माल लिया और माल बेचा, लेकिन एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो एमएसएमई में वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगा, फॉर लेंडिंग पर्पजेस ओनली, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्योर ट्रेडर्स है दे आर एग्जम्प्ट। अब कोई एक ट्रेडर्स है वो 90% तो ट्रेडिंग करता है, माल लिया और माल बेचा, लेकिन 10% कुछ कुछ केसेस में वो अपनी प्रोसेसिंग भी करता है या उसमें कोई सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इन दैट केस तो उसका जो रजिस्ट्रेशन रहेगा उसमें दिस एक्टिविटी विल आल्सो बी देयर, सर्विस प्रोवाइडर्स वाला भी रहेगा। तो इवन इफ वो ट्रेडिंग गुड सेल कर रहा है, इन दैट केस आल्सो द 43BH विल बी एप्लीकेबल, राइट। यानी 90% ट्रेडिंग करता है, 10% बीच बीच में कुछ कुछ काम कर लेता है, या एक आध महीना सिर्फ काम करता है, या हफ्ते महीने साल में सिर्फ हफ्ता भर काम करता है, बट ही हैज अ रजिस्ट्रेशन एज एमएसएमई में, अगर रजिस्ट्रेशन है एंड एज अ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो इवन इफ ही इज सेलिंग ही इज डूइंग अ ट्रेडिंग इन दैट गुड, तो भी ये डिसअलाउंस विल बी अट्रैक्टेड, ठीक है। तो एक ये चीज ख्याल में रखनी पड़ेगी, प्योर ट्रेडर्स और अगर सर्विस प्रोवाइडर्स है उसका रजिस्ट्रेशन भी अकॉर्डिंगली है तो वो पार्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज वो पार्ट अप्लाई नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है, कोई सिर्फ पैकिंग करता है या कोई सिर्फ थोड़ी सी प्रोसेसिंग करता है, मैंने दाल लिया उसको पैकेजिंग करके दे दिया मैंने, या कुछ माल लिया उसको थोड़ी सी पॉलिशिंग की मैंने और उसको थोड़ा चमका के मैंने दे दिया, या मैंने अवार्ड दे रहा हूं किसी को, अवार्ड में सिर्फ नाम छापना है और दे दिया, तो वेदर इट टेंटामाउंट्स टू मैन्युफैक्चरिंग और टेंटामाउंट टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमको देखना भी नहीं है अभी फिलहाल। हमको तो सिर्फ एक ही चीज देखनी जरूरी है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन उसका क्या है, वो क्या करता है ये मायने नहीं रखता। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है जहां पे आप मैन्युफैक्चरर है तो आपको कुछ छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका स्क्रैप सेल पे टीसीएस लगेगा नहीं लगेगा, वो लागू होते हैं। बट एज फार एज दिस 43BH इज कंसर्न, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, उसका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है एज अ मैन्युफैक्चरर और एज अ सर्विस प्रोवाइडर अगर रजिस्ट्रेशन है तो आपको 43BH लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है, मैंने जब माल परचेस किया तब तो उसका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसके एक महीने या एक हफ्ते बाद या एक दिन बाद उसने नंबर लिया और मेरे को नंबर कम्युनिकेट कर दिया, ये रहा मेरा नंबर, तो वेदर मैंने जो परचेस किया वो उस पे 43BH लागू होगा या नहीं होगा। जब आपने माल लिया था तब तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उस तारीख को आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो विदाउट एमएसएमई रजिस्टर्ड था, तो वो आपको 43BH लागू नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, जब मैंने माल लिया था तब तो उसका रजिस्टर था, लेकिन उसने अगले महीने में कैंसिल कर दिया, फिर माल ही नहीं बिक रहा था, लोग ले ही नहीं रहे थे तो कैंसिल कर दिया। जब लेकिन मैंने माल परचेस किया उस समय उसका रजिस्ट्रेशन था, तो दिस 43BH विल बी एप्लीकेबल इन सच केसेस, क्योंकि एज ऑन दैट डेट दी एज ऑन दैट डेट 43BH वाज एप्लीकेबल टू दैट केस। अब इसका एक रिपरकशन क्या आएगा ये पूरे प्रोविजंस का, ऑल आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस प्रोविजंस, कुछ लोग अफेक्टेड है, जो माइक्रो और स्मॉल से खरीद रहे सिर्फ वो अफेक्टेड है। मैं ट्रेडर्स हूं, ठीक है, मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से परचेस किया तो मेरी ड्यूटी है उसको पेमेंट करना है, मैं तो ट्रेडर्स हूं, मैं जुल्फेश भाई को माल बेच रहा हूं, तो ये तो मेरे को पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मैं ट्रेडर्स हूं, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, अफेक्टेड कौन हूं, मैं अफेक्टेड हूं, बाकी कोई अफेक्टेड नहीं है। तो मेरे लास्ट में चेक पॉइंट में कुछ ऐसे रेमेडीज कवर करता हूं। अब क्या सॉल्यूशन रहेगा, क्या सब लोग अगर एक साथ साइमल्टेनियस से कवर हो जाते तो द प्रोसेस बिकम इजी, कुछ लोग कवर है कुछ लोग कवर नहीं है, तो इन दैट केस उसके बड़े कास्केडिंग इफेक्ट होंगे। एक मेरे पास में रिसेंट केस आया, गवर्नमेंट सप्लाई करता है, गवर्नमेंट सप्लाई से उसको पिछले साल के 35 करोड़ रुपए लेने हैं गवर्नमेंट के काम के, तो उसके चूंकि गवर्नमेंट से पैसा नहीं है तो उसने अपने बाकी लोगों को जो माल से जिससे स्टील लिया था, जिससे उसने कुछ और आइटम्स परचेस किए थे, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है 2023 तक। इट वाज ओके, 2023 तक चलता था। अब लेकिन इस साल में आपको किसी से भी पेमेंट लेना है, सामने वाला अगर पेमेंट नहीं करता है, यू आर स्टिल बाउंड बाय द पेमेंट रूल,
ठीक है, तो आपके हाथ में डिसअलाउंस होगा। अब इमेजिन कीजिए मैंने जुल्फे भाई से मेरे को 50 करोड़ लेना है, मेरे को 48 करोड़ वापस देना था, उनको दे देना, लेकिन क्यों? मैंने अमाउंट भी इतना बोला है कि थोड़ा अच्छा लगेगा। दोनों को अच्छा लगेगा। या तो अब क्या होगा, इसके कास्टिंग विकेट है, मेरे हाथ में डिसअलाउंस होगा, यहाँ पे भी डिसअलाउंस होगा, यानी मल्टीपल डिसअलाउंसेस आर गोइंग टू बी देयर। ऐसा नहीं है कि मेरे को 50 करोड़ आना था, 45 करोड़ देना था, तो 5 करोड़ का डिसअलाउंस कर दो ना, मेरा जितना प्रॉफिट है, ऐसा कहीं भी लॉ नहीं है। यानी पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट है। मैंने 50 करोड़ आपके हाथ में डिसअलाउ हो गया, 45 करोड़ यानी आपके हाथ में तो होगा नहीं, क्योंकि आप एज ए ट्रेडर से काम करते हो, मेरे हाथ में हो गया, फिर इनके हाथ में हो गया, फिर नेक्स्ट लेवल पे हो गया। तो इट कुड हैपन दैट कि जो 100 रुपए के माल की रोटेशन हुई ना, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स 150 रुपए का हो जाए उसमें। देयर आर दी चांसेस, यानी कुछ केस स्टडी करके नहीं गया उसमें बना के देखा, तो प्रोबेबल ऐसा लगा देयर आर दी चांसेस कि इस तरीके से कुछ कैस्केडिंग इफेक्ट उसके होने लगेंगे। अब ऐसा भी एक्सक्लूजन नहीं दिया कि एक एमएसएमई और दोनों एमएसएमई छोचो मौसरे भाई है, या फिर दोनों एक ही बिरादरी के हैं, एमएसएमई है तो यार दोनों एक ही बराबरी पे है तो छोड़ दिया जाए, कोई एक्सक्लूजन नहीं है। मेरे को एमएसएमई से परचेस किया, मेरे को पेमेंट करना है, उन्होंने भी एमएसएमई से परचेस किया, उसका मीडियम माइक्रो स्मॉल से परचेस किया, उनको भी पेमेंट करना है। अब क्वेश्चन आता है, मेरे को सैलरी पेमेंट करना है, मेरे को दलाली का पेमेंट करना है, मेरे को कमीशन का पेमेंट करना है, फ्रेट का पेमेंट करना है, तो क्या ये भी कवर होंगे? सिंपल रूल, माइक्रो और स्मॉल और रजिस्टर्ड है तो इसमें से, चूंकि सैलरी पेमेंट नॉर्मली रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन तो जनरलाइज तो वहां नहीं आएगा, लेकिन एज फार एज द ब्रोकरेज इज कंसर्न, कमीशन इज कंसर्न एंड फ्रेट पेमेंट इज कंसर्न, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है माइक्रो एंड स्मॉल में, तो आपको 43B(H) लागू होगा। मैंने वेयर हाउस किराए से लिया है, आई हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ द रेंट। अब सामने वाला इंडिविजुअल है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं अपने कंफर्ट से दे दूं पेमेंट, लेकिन वो सामने वाला भी कंपनी है, उसका काम ही लॉजिस्टिक है, वो माइक्रो स्मॉल में रजिस्टर्ड है, आई एम ड्यूटी बाउंड टू मेक द पेमेंट। ठीक है, तो वहां ये सब कंपलसरी वाले पार्ट आते हैं। अब आ गया ईयर एंड प्रोविजन पे क्या होगा। अब ईयर एंड में कई बार कई चीजें प्रोविजन कर देते हो, ऑडिट फीस पे करनी है, अब वो सर्विस ऑडिट फीस पे करनी है, या कोई चीज का पेमेंट करना है। अगर आपके पास एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स है और एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज है, इन दैट केस यू विल बी लायबल फॉर द डिसअलाउंस। अगर वो नहीं है, सिर्फ प्रोविजन विदाउट द एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द प्रोविजन विल नॉट बी subject to disallowance। मार्च के पहले जरूर आ जाएंगी। मैंने कल एक्चुअली जब ये प्रेजेंटेशन बना रहे थे, अलग अलग प्रोग्राम में जा रहे थे, तो बोला एक काम करते, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो एक लेटर मैंने ड्राफ्ट किया, जो मैं लेटर आप लोगों से भी शेयर करूंगा, नॉट एज ए क्लाइंट, जनरल में शेयर करूंगा, कि उसमें यू नीड टू, अब उनको अपने क्लाइंट को सर्कुलेट कर दो, भैया एमएसएमई का कानून आया हुआ है, आप हमको पेमेंट जल्दी कर दो, नहीं तो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो मैं अपने ऑडिट फीस का लेटर देने वालों कि भैया उनके हाथ में नहीं तो डिसअलाउंस हो जाएगा, तो इट्स आई एम जस्ट सपोर्टिंग देम टू मेक द पेमेंट टू मी, ताकि उनका डिसअलाउंस नहीं हो। अब इंडिया में क्या प्रॉबेबल इश्यूज क्या क्या आने वाले हैं, हमेशा एक नया नया इश्यू मिलेगा। एक इश्यू क्या आने वाले, एक बहुत बड़ा, मतलब एक्चुअली हम लोग क्या जब प्रोग्राम करते हैं तो एक जनरल ओपन डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। इंडिया है, बहुत सारी चीजें एक्चुअली अलग अलग तरह, इंडिया क्या वर्ल्ड ओवर सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें होती है, कि वहां पे तो फॉरेन में भी अच्छे से सेलिब्रिटी भी प्रोसिक्यूशन और जेल में गए हुए फॉर दिस टैक्स इवेशन, तो सब जगह ऑल ओवर द ग्लोबल ये प्रैक्टिसेस तो होती है अलग अलग जगह। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, एक बहुत बड़ा काम होता है कि अपने अकाउंट्स, भले ही मार्च खत्म हो जाता है इनकम टैक्स गवर्नमेंट के हिसाब से, अपनी बुक्स तो सितंबर तक चलती है, और सितंबर में पता चलता है यार परचेसेस कम हो गई है, तो कई बार बैकडेटेड बिलिंग की कोशिश करते हैं, कई बार बैकडेटेड कमीशन के बिल लेते हैं, या बैकडेटेड खर्चा बुक करने की कोशिश होते हैं, तो क्या होगा। जीएसटी ने तो पहले ही रूल ला दिया था, आपको ई इनवॉइस करने हैं, ऑनलाइन साइट पे करना है अपलोड, और वहां से चेक कर रहे हैं। अब इनकम टैक्स वाले कैसे पीछे रह सकते हैं, इनकम टैक्स का तो कलेक्शन जीएसटी से भी ज्यादा है, तो दे हैव टू स्टे अहेड। तो उसमें भी ये प्रोविजन आ गया कि अब बैकडेटेड बिलिंग वगैरह पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि 43B(H) इज देयर। अगर आपने प्रोविजन किया और आपने 15 दिन 45 दिन में पेमेंट नहीं किया, तो डिडक्शन तो आपको ऐसे भी नहीं मिलना है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस सब्जेक्ट टू दैट। और ये ना सिर्फ शुरुआत में सोचते रहिए, वी शुड बी हैप्पी कि माइक्रो स्मॉल ही है, अगले साल की वेट कीजिए, जब भी कोई नया कानून आता है ना, वो एकदम से जोर का झटका है ना, धीरे धीरे देते हैं। ये हमेशा हुआ है, पहले थोड़ा सा लाइट लाया, फिर थोड़ा हार्ड किया, फिर थोड़ा हार्ड किया, तो वो सब जगह बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, बट इन डेज टू कम इट विल बी लाइक दिस ओनली, कि अगर एमएसएमई बाकी भी जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उस पर प्रोविजन एक्सटेंड करेंगे। आई सपोज के मतलब जिसको जितना टाइमली जितना बेटर अगर हम लोग कर लेंगे उतना बेटर होगा। बैकडेटेड बिलिंग और ये सब चीजें जो लोगों की होती थी, ये पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन आता है
कि रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मैंने सचिन से माल खरीदा, 100 रुपए का माल खरीदा, इन्होंने 2 रुपए फ्रेट चार्ज, लेबर चार्ज लगा के 102 रुपए की मेरे को बिलिंग कर दी। अब मेरे बुक्स में 102 रुपए देना है, अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो डिस्टर्ब कितना होगा, 100 और 102, 102, क्योंकि मेरा 2 रुपए भी मैं कहीं ना कहीं तो डेबिट कर रहा हूं मेरे एक्सपेंसेस में, तो 102 दूंगा। ये रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है तो भी दैट विल बी कवर्ड बाय दैट। अब वो लोग तो क्रिएटिव माइंड बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सचिन से मैं बहुत सारे टीवी का काम है, सचिन का मैं टीवी बहुत सारे खरीदता हूँ, मैंने सिर्फ 5 मैं भी टीवी का ही काम करता हूँ, मैंने टीवी खरीदा, टीवी बेचता हूँ, मैंने सिर्फ 5 फ्रिज खरीदे और 5 फ्रिज मैंने बेच दिया, और मैंने बोला तेरे फ्रिज की क्वालिटी तो तेरे फ्रिज की क्वालिटी ठीक नहीं थी, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। विल इट बी एक्सेप्टेबल? नो, है ना। तो आप डिस्प्यूट रिलेटेड टू गुड्स है, वो गुड्स आपके पास में होना चाहिए। महेंद्र भैया का एक इश्यू आया था मैनेजर से का कि भैया ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तो डिस्प्यूट है तो गुड्स आपके पास में रहना जरूरी है। अगर आप बेच देते हो, यू कैन नॉट से कि वो डिस्प्यूट प्रिवेल कर रहा है इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं एक्चुअली। तो बहुत सारे इस तरीके की चीजें अलग अलग होंगी, यानी कहीं ना कहीं लिंक करनी जरूरी है। एक आग है तो धुआं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट एस्टेब्लिश होता है कि डिस्प्यूट बनाया हुआ डिस्प्यूट्स है या एक्चुअल डिस्प्यूट्स है। तो बेटर रहेगा कि अगर एक्चुअल है तब तो सपोर्ट कर लेगा, एक्चुअल नहीं है तो देयर मे बी सम इशू कुड बी देयर लाइक दिस। अब क्वेश्चन आता है, नॉर्मली हम लोग माल परचेज करते हैं तो एक माना जाता है फीफो बेसिस, पहले आया पहले बेचा। अब ये पेमेंट आया तो ये भी यही सिस्टम में माना जाएगा। मेरे को सचिन को 1 करोड़ रुपए देना है, 31 मार्च 2023 को देना था, मैंने इस साल उससे 25 करोड़ का माल खरीदा, यानी मेरे को टोटल 1 करोड़ 25 लाख देना था, मैंने 50 लाख का पेमेंट किया इनको। तो क्या ऐसा मान सकता हूं मैं कि ये 50 लाख का जो पेमेंट किया, 25 लाख इस साल क्या किया और 25 लाख पुराने बिल के अगेंस्ट में दिया है? पॉसिबल है वो हो पाना? कर सकते हैं। अब उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आई विल बी रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस थिंग्स नॉट ओनली बिफोर द ऑडिटर बट बिफोर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आल्सो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी मैंने पहले जो पेमेंट किया ये लीफो हो गया, लास्ट दिन जो आया मैंने उसका पेमेंट पहले किया और बाकी का पेमेंट मैंने बाद में कर रहा हूं। इट कुड बी दैट वे, या कुछ ऐसा भी हो सकता है मैंने ये बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करी, ये बिल के अगेंस्ट में पेमेंट किया, ये बिल मेरे बाकी है। ये कंफर्मेशन है, रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है जब भी इनकम टैक्स रेट होती है, सर्वे होते हैं, वो केसेस में जब भी एलईडी खड़े होते हैं ना, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें आती है लोगों की कि जो यहाँ प्लानिंग होती है ना, ये पूरी प्लानिंग वहां फेल हो जाती है, क्योंकि सडनली कोई इनकम टैक्स वाला या कोई ऑफिसर आते हैं और ये कभी जीएसटी वाला आता, कभी इनकम टैक्स वाला आता, कभी ईडी आता, देयर आर मल्टीपल एजेंसीज। तो कल को कोई भी एजेंसीज आती है, उस समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, तो दैट हार्म्स। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाले आजकल आते हैं तो दे टेक द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट इनकी आदत है आजकल, सबको अलग अलग स्टेटमेंट, मेरे को अलग लेंगे, मेरे पार्टनर का अलग स्टेटमेंट लेंगे, मेरे एम्प्लॉय का अलग स्टेटमेंट लेंगे, और जो सप्लायर उसका भी कई बार स्टेटमेंट अलग लेते हैं। तो आपका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है पिछले साल के, अपन तो ऑडिटर तो लिख देगा, या हो सकता है आप भी लिखा ले उससे कि भैया रिटर्न एग्रीमेंट है, लेकिन एक्चुअल में नहीं और बाद में प्रूव होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अदरवाइज फ्लो होते हैं। फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स, पेनल्टी 100% ऑफ द टैक्स सॉट टू बी वेटेड आता है, ठीक है ना। तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रैक्टिस बना लीजिएगा, जो भी आपको करना है, रिटर्न करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स करने हैं, इसको रिकॉर्ड्स पे लाके रिकॉर्ड्स रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करो। अब जैसे जीएसटी एंड ऑल कंप्लायंस के लिए एक स्पेसिफिक ऑफिसर हैज टू बी देयर, एक ऑफिस यानी मतलब सब लोगों ने अपने ऑफिस में एक पर्सन अपॉइंट कर लेना जरूरी है टू इंश्योर दैट कि ये लीगल ट्रू स्पीड में ये सब चीजें कंप्लाई होना चालू हो जाए। देन क्वेश्चन आता है, मैंने सचिन से मान लिया अगेन 100 रुपए का माल परचेस किया, 18 रुपए जीएसटी लगा के 118 दिया, मैंने इनको पेमेंट नहीं दिया, तो डिसअलाउंस कितना होगा, 100 रुपए होगा या 118 रुपए होगा? 100, क्योंकि मेरा 18 रुपए में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट ही नहीं कर रहा हूं, इसलिए डिसअलाउ नहीं होगा, ठीक है, मेरा जीएसटी अकाउंट को करते हैं। अब ये कंपोजिशन स्कीम में है तो अगर सपोज वो 118 का माल आ गया एक ही बिल का, तो मैं तो पूरा 118 रुपए ये चार्ज करें तो पूरा 118 हो जाएगा वाला इन दैट केस, ठीक है। और मैं अगर कंपोजिशन स्कीम में हूं तो मैं भी पूरा मेरे परचेसेस में डिबिट करूंगा। अगर मैं कंपोजिशन में तो 100 रुपए प्लस 18 रुपए भी लगा के बिल दिया, 118 का आया, तो मेरे उस केस में पूरा 118 डिसअलाउंगा, ना सिर्फ 100 रुपया। तो ऑलवेज अ क्वेश्चन, तो वो कहीं एक जोक था, कहीं आपने सुना होगा, ये ऐसा होगा क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सब क्वेश्चंस ऐसे ही फ्लो होते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम इज द केस विद दिस एक्चुअली, अलग अलग आंसर्स कुड बी देयर, अलग अलग सिचुएशन कुड डिफर हो सकता है। अब क्या ये सब बायर्स के लिए एप्लीकेबल है? मेरे को ऑडिट खुद की बुक्स करानी है या नहीं करानी है, इट डजंट मैटर, सबको लागू है, यानी बायर्स है, बायर्स को तो ऑल द बायर्स इट्स एप्लीकेबल। जैसे कुछ प्रोविजन होता है टीडीएस का, इंडिविजुअल केस में ओनली अगर मैं ऑडिट में कवर हूं तो ही मुझे टीडीएस काटना है, नहीं तो मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं है। इस केस में पर्टिकुलर 43B के लिए
ऑल बायर्स आर कवर्ड, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना कंपलसरी और कराना कंपलसरी, इट्स इमटेरियल। देन बायर्स, मैं तो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मेरे को भी करना जरूरी है। यस, मैं एमएसएमई में हूं नहीं हूं, मैं लार्ज हूं स्मॉल हूं मीडियम हूं, कोई भी मैं ट्रेडर्स हूं, इट डजंट मैटर, मैंने माइक्रो स्मॉल से लिया, द प्रोविजन इज एप्लीकेबल। अब कुछ केसेस होते हैं जहां पे इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है, आप अपना जितना टर्नओवर उसका 6% या 8% प्रॉफिट बता दीजिए, ठीक है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है। तो क्या उनको भी ये पेमेंट करना जरूरी है? विद इन एग्रीड पीरियड 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट करना जरूरी है। देखिए रूल तो बोलता है आपको एमएसएमई एक्ट में कार्रवाई हो सकती है रिकवरी के लिए, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में 6% और 8% का जो रूल लागू होगा, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये सब खर्चे जो एडबैक वगैरह हो गया, ये सब माइनस, सब प्लस माइनस करके आपने ऑफर किया। यानी अगर कोई प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन अगर ऑप्ट करता है, उस केस में आपको डिसअलाउ करना जरूरी नहीं है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, जिनको ऑडिट नहीं कराना है, 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, तो ऑडिटर्स को मेंशन नहीं करेगा, लेकिन रिटर्न साइन एसएससी साइन करता है, उनके सिग्नेचर से फाइल होता है, तो एसएससी को खुद को इंश्योर करना पड़ेगा उसको कंप्लाई किया या नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, मैंने माल परचेज किया, 100 रुपए का माल परचेज किया, मैंने 95 का पेमेंट करके 5 रुपए इनका रोक दिया, या तो रिटेंशन मनी करके रोक दिया या मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट करके रोक दिया। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने बोला मैं 2 साल बाद में दूंगा, 3 साल बाद में चेक करूंगा, इन दैट केस वेदर 5 रुपए का डिसअलाउंस होगा? यस, नो, ओपन टू यू, आप जो व्यू सजेस्ट करें। यस, Is it capex material or revenue money? अपन अभी फिलहाल सिर्फ रिवेन्यू की बात करते हैं। सर जितना पीएनएल को डेबिट होगा अकॉर्डिंगली मैंने 100 रुपए डेबिट किया है, तो 100 रुपए डिसअलाउ। हाँ अगेन मैंने, लेकिन आप देखा जाए टेक्निकली जो मुझे लगता है अलग या सेपरेट व्यू पॉसिबल है, दोनों व्यू पॉसिबल है एक्चुअली, और डिपार्टमेंट वाला तो यही बोलेगा कि भैया मैं नहीं देता हूँ, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन करने जरूरी है इन सब चीजों के। अब ये रहेगा कि मैंने 95 रुपए पेमेंट कर दिया, 5 रुपए जो था ना टुवर्ड्स गुड्स बाकी नहीं है, तो मेरा वो नेचर ऑफ पेमेंट जो 5 रुपए मैंने रोका है ना, ये टुवर्ड्स गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स नहीं रोका है, मैंने टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ दैट गुड्स रोका है या फॉर सम अदर रीजन रखा है। तो नेचर ऑफ पेमेंट जो है 5 रुपए का नहीं लिया, वो बगैर सर वो चेंज हो जा रहा है अपना, यानी वो यस सर। तो मेरे को लगता है कि शायद वो 5 रुपए का डिसअलाउंस नहीं होगा, सब्जेक्ट टू द व्यू बाय ऑफ द एमिनेंट स्पीकर्स विद मी। तो मेरे को लगता है कि 5 रुपए शायद डिसअलाउंस नहीं आना चाहिए। अब एक हो गया कि मैन्युफैक्चरर है, ये प्लाईवुड की ट्रेडिंग करते हैं, अब इन्होंने उठा के कोई और चीज की ट्रेडिंग कर दी, अनाज का मटेरियल सप्लाई कर दिया मेरे को, ये मैन्युफैक्चरर है, इनका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है एज ए मैन्युफैक्चरर, लेकिन वो प्लाईवुड करके है। अब इन्होंने मेरे को ट्रेडिंग करके चावल दे दिया या अनाज दे दिया कोई चीज का, तो वेदर ये पेमेंट जो मेरे को करना है ये भी मेरे को 43BH में एप्लीकेबल होगा क्या? मेरे को टाइम पे ये भी करना जरूरी है, ठीक है। मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज है, मेरे को तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन देखना है, इफ इज रजिस्टर्ड, ये क्या करते हैं, आई एम नो वे कंसर्न विद दैट, एक्चुअली आई हैव टू मेक द पेमेंट फॉर दैट आल्सो। तो मतलब अगर ये ट्रेडिंग का गुड्स है तो भी मेरे को करना है। द क्वेश्चन जो आपने बोला था रिवेन्यू गुड्स और कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने किसी से मशीन परचेज की है या मैंने कार परचेज की है, तो क्या मैंने अगर उसको पेमेंट नहीं करता तो कोई डिसअलाउंस होगा? अगेन डिसअलाउंस वही होगा जो आपको अदरवाइज अलाउ हो रहा है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगर डेबिट साइड में आ रहा है then only 43BH will be applicable, otherwise it will not be applicable। तो कैपिटल गुड्स का अगर पेमेंट करते हो there are no disallowance are going to be there। अब ये कैसे और क्यों होता है? What about depreciation? सर डिप्रिशिएशन भी उसमें अलाउ होगा क्योंकि उसने कहीं पे भी इसको एक्सटेंड नहीं किया। अब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों अपन बोल सकते हैं कि डिप्रिशिएशन डिसअलाउ नहीं होगा। अगर मैं कोई कार कैश में परचेस करता हूं तो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आपकी कैश में पे किया है ना, अगर आपने 10,000 से ऊपर का, तो वो कॉस्ट में से माइनस करेंगे, बैलेंस अमाउंट पे आपको डिप्रिशिएशन मिलेगा। ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में, बट देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर दिस पार्ट। तो इसलिए अगर मैंने पेमेंट नहीं किया कैपिटल गुड्स का, डिप्रिशिएशन विल स्टिल बी एडमिसिबल। और सेम क्या होता है, अगर वो जो टीडीएस का डिसअलाउंस है ना सर, वो टीडीएस का भी डिसअलाउंस अगर मैंने कैपिटल गुड्स परचेस किया है कोई और मेरे को टीडीएस काटा है, मैंने टीडीएस नहीं काटा, तो उस केस में मेरा वो एक्सपेंस डिसअलाउ होता है, तो कॉन्सिक्वेंटली डिप्रिशिएशन डिसअलाउ नहीं होता है अगर मैंने नहीं काटा। तो कैपिटल गुड्स अगर परचेस करता हूं, कोई कैपिटल गुड्स का काम कराता हूं और मैं टीडीएस नहीं काटता हूं, उस केस में डिप्रिशिएशन डिसअलाउ नहीं होता और कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो सेम लॉजिक, सेम रेशियो डिसाइडेड बाय द कोर्ट विल बी एप्लीकेबल इन दिस केसेस आल्सो।
अब क्वेश्चन आता है, सीजनल गुड्स परचेज करता हूं मैं, सीजनल गुड्स का तो मैं फटाके की दुकान है मेरी, और मेरा फटाके का तो रूल ही है कि इस साल मान लिया अगले साल पेमेंट कर दूंगा, इट गोज ऑन दैट वे। तो क्या होगा, और उसने सामने वाले ने बोला एक साल में पेमेंट करो, या एक मेरे फोन आया कोई एग्री प्रोडक्ट इसमें क्या फर्टिलाइजर्स में डील करता है, तो हमारी पेमेंट टर्म सिर्फ 5 महीने की है, 6 महीने की है। गारमेंट्स वालों का फोन आया कि हम तो 5 महीने का टर्म्स डिसाइड करते हैं, 6 महीने 7 महीने तक करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम चलता है, सामने वाला भी रेडी है, हम भी रेडी है। तो क्या आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस कुछ भी रहे, गवर्नमेंट जो कहती है वो सही है, गवर्नमेंट ने बोला आपको इस दिन में करना है, इस दिन में करना है, द बॉस इज ऑलवेज राइट, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट। उन्होंने जो बोला 45 दिन में करना है, आपकी म्यूचुअल प्रैक्टिसेस से ऊपर हटके ये है। अब ये बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी? यस, गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। इसके पहले भी डिसाइड किया है, आपका जीएसटी का भी रूल है, 180 दिन के अंदर पेमेंट करो, नहीं करोगे तो आपको जीएसटी रिवर्सल करना है। इट हैपेंस एंड डोंट गेट सरप्राइज, गवर्नमेंट जो लगता है ना गवर्नमेंट को, दे नीड टू इंश्योर द कंप्लायंसेस, उस तरीके से रूल बन जाएंगे। अब बहुत सरप्राइज में तो आप कार का ये जो अगर गवर्नमेंट के पास में ट्रैक रिकॉर्ड है, स्टैटिस्टिक्स अगर ऐसी आ जाए कि बहुत लोग सिग्नल तोड़ के काम करते हैं, तो गवर्नमेंट एक कानून लाने डिफिशिएशन में, प्रोवाइडेड दैट अगर आपका एक चालान से ऊपर चालान बन गया तो आपको डिफिशिएशन नहीं दिया जाएगा। इट इज पॉसिबल। पेट्रोल के एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं देंगे, पॉसिबल है। आपका बच्चा स्कूल में अगर 2 बार से ज्यादा पनिशमेंट मिल गई तो जो स्कूल फीस की डिडक्शन लेते हैं ना 80 में, वो नहीं देंगे, पॉसिबल है। गवर्नमेंट हैड इट्स वे ऑफ डूइंग द थिंग्स एक्चुअली। लोग बोलते हैं कि दुनिया में कभी लोग सुधर नहीं सकते, इंडिया के अलावा ऐसा कानून कहीं और है भी नहीं, कैसे नहीं सुधरेंगे और कैसे नहीं होगा। देखिए ऑटोमेटिक होना है, अपने आप होता है, गवर्नमेंट हैड इट्स ओन वे ऑफ डूइंग द थिंग, एक इन अ लाइटर वे। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग कानून होते हैं ना, तो ये कहीं पढ़ा था नीदरलैंड में कानून है कि वहां क्या धूप बहुत कम आती है, तो लोगों के टैक्सेस से अलग अलग, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू चाहिए पैसे देश चलाने के लिए, खर्चे करने के लिए। तो वहां क्या किया, आप कितनी सनलाइट आपके घर में आ रही है वो हिसाब से टैक्स ले रहे थे। तो वो नीदरलैंड में एक जो कंट्री में वहां की जो खिड़कियां है ना, वो अभी ऐसे लंबी खिड़की है सर, यानी ऐसे चौड़ी खिड़कियां नहीं है, ऐसे लंबी है। तो उसका लॉजिक क्या है कि एक समय जो किंग था वहां का, उसने ये रूल लाया था। तो बोले उसमें क्या होता था, लंबी खिड़की रहती तो धूप ज्यादा आती थी, ऐसे लंबे दूर तक जाते थे, तो उस तरीके से लेते थे और टैक्स कम लगता था। तो वेरी मच पॉसिबल, अगर टैक्सेशन हिस्ट्री में जाके देखेंगे ना कि सब लोगों ने अपने अपने तरीके निकाले थे टैक्स वसूल करने के, इट हैपेंस एवरीवेयर, सबके अपने तौर तरीके निकालने के, और गवर्नमेंट का अपना काम है तौर तरीका काम करने का। अब एमएसएमई एक्ट 2006 में आया था, बहुत समझाया टाइम पे पेमेंट कर दो, टाइम पे पेमेंट कर दो, लेकिन तरीका तो वही समझ में आया जो तरीके से वो समझाती है। ये 3 लाइन से उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किया, सिर्फ 3 लाइन कि पेमेंट एमएसएमई एक्ट के हिसाब से कर देना, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ 3 लाइन थी। वी ऑल 2 महीने से तो हम सब लोग देख ही रहे, और कंप्लायंस ऑटोमेटिक होगा। अच्छा, लोग चला चला के पेमेंट भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं भैया कितना पेमेंट देना है, तो मेरे को लोन कर देना, मैं तेरे को वापस देता हूँ, तो मेरे को लोन करके देते वापस। ये और अलग अलग तौर तरीके चल रहे हैं। अब क्या हो गया, एक और चीज है, अब इसके आने वाले समय में क्या था, लॉ नया आता है फिर भी ठीक है, एक बार का कंप्लाई, पहले तो डिफिकल्टी बहुत होती कंप्लायंस करने में, और उसके बाद अगले साल उसके रिपरकशन समझ में आएंगे। अगेन एग्जांपल पे आते हैं, सचिन भैया से मैंने 1 करोड़ की परचेस किया था, बाद में 25 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस था, 25 लाख की मैंने परचेस की, मैंने 50 लाख का पेमेंट किया, ठीक है। अब इसको कैसे एडजस्ट करो वो तो ठीक है। उसके अगले साल में, यानी मेरा इसके 2 पार्ट है पहले पेमेंट करने के, एक ओपनिंग बैलेंस और जो पुराने बिल है जिसके मैंने डिसअलाउ कर दिया, कुछ पार्ट अगर डिसअलाउ कर दिया, अगर मैं इनको 50 लाख का पेमेंट करूँ, मैं बोलता हूँ कि ये पेमेंट मेरा ओपनिंग बैलेंस का है, तो मेरा टोटल इनको 75 लाख देना था, उसमें 50 लाख पुराना, 25 लाख अभी का, ठीक है। अब मैं अगले साल 15 लाख देता हूँ, उसमें बोलता हूँ 5 लाख ये पुराने बिल के अगेंस्ट में, जो मैंने बोला था ये माल बिक जाएगा तो दूंगा, वो दिया, बाकी पुराना वाला। तो आपको एवरी पर्सन की आपको वर्किंग करके रखनी जरूरी है, कितना डिजिटल हो गया, कितना ओपनिंग बैलेंस का पार्ट था, यानी ये आने वाले 5-10 साल तक आपको बिल टू बिल वर्किंग करके रखनी जरूरी है। एंड दिस आर द इश्यू दैट आर गोइंग टू अराइज, यानी 1 to 1 बिल टू बिल की वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, यानी आपके अकाउंटेंट को पूरी चीजों काम पे लगा के रखना पड़ेगा। वन स्पेशल पर्सन हैज टू बी अपॉइंटेड टू एंश्योर सच टाइप ऑफ कंप्लायंसेस। अगर बड़ा काम है तो ये करना बहुत जरूरी है। अब आता है, मैंने इस साल में परचेस किया, 31 मार्च 2024 को परचेस किया, रिटर्न भरने में मैंने डिसअलाउ कर दिया उसको, ठीक है। और मैंने अगले साल 8 महीने बाद में पता चला यार वो क्वालिटी के गुड्स तो काम नहीं है, मैंने माल वापस कर दिया इनको। उस केस में मैंने एक्सपेंसिव डिसअलाउ कर दिया था वाले, और जब माल वापस कर दिया तो क्या करूंगा मैं तो क्रेडिट नोट बना के माल वापस कर रहा हूं उसका, ठीक है। इन दैट केस
आइडियली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, आपको डिडक्शन मिलना चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, ये कोर्ट ही बोलता है हाँ ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ऑफिसर नहीं मानते ये इट्स नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। उनके हिसाब से हमारा कानून तो नहीं बोलता, कानून में नहीं बोला है ना, वी वोंट अलाउ इट, भाई नो इट बेटर कि वहां पे सब यू हैव टू फाइट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, और वो ये इश्यूज आने वाले हैं, ये रहेंगे। अब एक आता है, मैंने माल परचेज किया, मैं तो पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ इनको, तो हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया एक काम करना, मैं पेमेंट तो नहीं कर सकता हूँ, तो इसको लोन में कन्वर्ट करते हैं, लोन में कन्वर्ट कर दो और मैं लोन करके पेमेंट दे दूंगा, वेदर मेरे को डिडक्शन मिल जाएंगे इस केस में। मेरे को परचेज और गुड्स माल देना था, वो कन्वर्ट हो गया लोन के तरीके से कन्वर्ट हो गया। एक्सेप्टेंस ऑफ लोन बाय बुक एंट्री वाला फिर इशू आ जाएगा। अभी भी नेक्स्ट वही वाला कर रहा हूँ मैंने इंडिया। अच्छा अब आ गया, अब टेक्निकली देखा जाए तो मेरे को परचेज ऑफ गुड्स का पेमेंट था, जब मैंने लोन में कन्वर्ट कर दिया तो गुड्स का तो पेमेंट हो गया, वो लोन का बाकी रहा मेरा अमाउंट। सब्जेक्ट टू ऑल द लिटिगेशन, सब्जेक्ट टू ऑल द स्टार मार्क, जो मैंने एक छोटा सा स्टार शुरुआत में मारा था, सब्जेक्ट टू दैट डायरेक्शन मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए, क्योंकि लोन में कन्वर्ट हो गया और हमने म्यूचुअली एग्री किया, उसके डॉक्यूमेंटेशन बन गए हैं, तो दैट विल टेंटामाउंट टू पेमेंट। मैंने परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट में जो पेमेंट है वो मेरे को करना जरूरी है, मैंने वो तो कर दिया, वो लोन का बाकी है मेरा अमाउंट। अब उसका क्लासिफिकेशन मेरे बुक्स में बराबर है क्या, फिर सामने वाले की बुक्स में भी वो क्लासिफिकेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ। सामने वाला जब मैं बोलूंगा मेरे ऑफिसर को, इनकम टैक्स ऑफिसर मेरा जब केस वेरीफाई करेगा तो मैं बोलूंगा ये क्रेडिटर्स नहीं, ये लोन है, ये मेरी बुक्स में है, तो सामने वाला एक लेटर उसको भी तो देगा, उनके ऑफिस वहां से भी तो कॉल करेगा कंफर्मेशन, और वो अपने बुक्स में डेटर्स बता रहा है, तो क्या इश्यूज आर गोइंग टू बी देयर। स्टोरियां बहुत सारी है, बहुत सारी बनेंगी, ठीक है, लेकिन इश्यूज आर गोइंग टू बी देयर, तो लिटिगेशन तो करना ही है, करते रहना पड़ेगा, दिस आर देयर। अब पेमेंट बाय ऑफ जनरल एंट्री कर देता हूं, मेरे को जुल्फिश भाई को पेमेंट देना था, सचिन से लेना था, क्या ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बोला भैया तुम पेमेंट इसको दे देना, और ये एग्री हो गए, और मैंने मेरे बुक्स में एंट्री पास कर दी उसकी, तो मेरे बुक्स में तो ये भी नील हो गया, इनको जो देना था वो तो नील हो गया, कम से कम मेरे को लेने का तो कंसर्न नहीं है, इनका नील हो गया, और इनके बुक्स में भी नील हो गया मेरा अकाउंट। तो क्या मैं जनरल एंट्री से अगर एंट्री पास कर लेता हूं तो वेदर इट विल टेक अमाउंट टू पेमेंट, टेक्निकली यस, ठीक है, सब्जेक्ट टू रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन। एमएसएमई एक्ट कहीं पे भी नहीं बोलता, इनकम टैक्स एक्ट कहीं नहीं कहता है, लेकिन ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं ना कहीं उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइल विद थिंग्स, तो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा। अब क्वेश्चन आता है मेरे को, पेमेंट पे अगर आप खर्चे की छूट देंगे तो क्या मेरा जो एडवांस दिया है उसको भी छूट मिल जाएगी मेरे को, अगर पेमेंट नहीं करता तो आप डिडक्शन नहीं देते, जब पेमेंट करता हो तब डिडक्शन देते हो, मैंने एडवांस पेमेंट दे दिया तो डिडक्शन दे दीजिए मुझे। स्मार्ट मत बनिए, जितना कहा उतना ही काम कीजिए, एडवांस का कोई छूट नहीं देने वाले हम लोग, वो आपको वही बेसिस पे होगा जो बेसिस पे होता है, जब बिल आ जाए, खर्चे का बिल हो जाए तब करना, एडवांस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब बड़े इंटरेस्टिंग चीजें आती है जब आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। अब एक एग्जांपल इंटरेस्टिंग जब बनाना था सेशन, आई वाज नोइंग कि कुछ चार्टर रहेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब उसको टेक्निकल इश्यूज भी ले देते हैं। मैंने एक प्रिंटिंग की मैंने फाइलें छपाई, 10 लाख रुपए की फाइल छपाई, सचिन भैया से फाइल परचेज की मैंने, 31 मार्च को परचेज की मैंने, ठीक है। अब 31 मार्च को परचेस करने के बाद में उसमें मेरे को टीडीएस काटना चाहिए था, मैंने टीडीएस नहीं काटा और ना पेमेंट दिया। अब जब मैं रिटर्न भरूंगा, महेंद्र भैया होंगे, जेठा भाई है, दे कैन टेल इट बेटर, क्या अब इस केस में मैं जब अपना रिटर्न भरूंगा 24 का, तो मेरा क्या इफेक्ट होगा, 43 बीएस तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया। अब उसने मैंने टीडीएस भी नहीं काटा, तो टीडीएस अगर आप नहीं काटते तो 30% डिसअलाउंस होता है, तो वो भी डिसअलाउ होगा मेरा, एक ही डिसअलाउ हो गया, पूरा ही डिसअलाउ हो गया। लॉजिक और लॉ, इनका आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते। लॉ एंड लॉजिक आर ऑफन स्ट्रेंजर, लॉजिकली व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, मैं भी वैसे ही मानता हूं, बट ऑफिसर्स नहीं मानते हैं, देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन, तो सेपरेट मैं करूंगा, यानी ऐसे केस होने वाले हैं, एंड अगर विश्वास नहीं हो तो 1 साल बाद में, 2 साल बाद में हम फिर मिलेंगे और फिर ये इश्यू पे डिस्कस करेंगे, इसमें ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के जजमेंट्स मिलने लग जाएंगे 2 साल बाद में, तो दी इश्यूज आर गोइंग टू बी देयर, तो 2 बार डिस्कस हो गया। अब इसको और इंटरेस्टिंग बताते हैं कि मैंने उस समय तो 45 दिन में तो पेमेंट नहीं किया, उसके बाद मैंने 60 दिन बाद में पेमेंट किया, मैंने पूरा कैश में पे कर दिया। तो एक्ट बोलता है आपने अगर कैश पेमेंट करते हो तो 48(3) का भी, 3A का भी डिसअलाउंस होगा, 48(3A में भी है, पुराने साल का खर्चा बाद में पेमेंट करते हो तो वो भी डिसअलाउ होता है। क्या होगा लॉजिकली, तो एक गलती की है एक बार मार दो, रोज एक चाटा 3 अलग अलग जगह से मत मारिए, एक जना मार दो कोई भी, लेकिन वो तीनों सेक्शंस ऐसे ऑपरेट करते हैं, इश्यूज आर गोइंग टू बी देयर, ठीक है। अब आता है सिस्टर कंसर्न,
जो कई बार वो अलग अलग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, एक बार बीआई में प्रोग्राम लिए तो उसमें बोला कि सिस्टर कंसर्न है बहन की कंसर्न ना बोले। सिस्टर कंसर्न है भाई रिश्तेदार माँ बाप किसी की भी कंसर्न रहती है, अगर उससे परचेस किया तो घर की बात है ना, वो एक ही घर के घर में तो मैटर है, क्या मेरे को पेमेंट करना जरूरी है? यस। कानून में कोई वो नहीं है, सिस्टर कंसर्न जैसा कोई टर्म्स नहीं है। आपने परचेस किया पेमेंट कर लो, वो कोई भी हो, आपका बेटा हो, आपके फादर हो, आपका ब्रदर हो, सिस्टर्स हो, आपको पेमेंट करना है, यानी पेमेंट करना है। बाद में लोन सब चलेगा, लेकिन तकलीफ क्या है जुर्बेश भाई, अभी जितने लोग बैठे हैं ना, ये एक पार्ट है, और बहुत सारे लोग हैं जो बाद में पता देखते भी नहीं है, पता भी नहीं है, यानी लॉ बने में 10 साल 20 साल हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं अच्छा ऐसा रूल है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, अब उनको कहाँ बताया कि ये 20 साल से रूल लागू है, ऐसा ही होता है, यू हैव टू फॉलो। अब जब आती है चीजें तब ये क्वेश्चंस आते हैं, बट दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी देयर, यानी खास करके जितने चार्टर्ड है ना, वी हैव टू बी ऑल द मोर केयरफुल कि जो बैलेंस शीट फाइल करते हैं बनाते हैं, उनसे कम से कम बुला के ये डिस्कशन जरूरी है कि आप इसको क्लासिफिकेशन तो डेटर्स ना करते हो, एडवांस लोन एडवांसेस कर लो, और वो क्रेडिटर्स ना करते हो उसको अनसेक्योर्ड लोन ले ले, प्रोबेबल कर ले उस चीज, या उद्यम आधार नहीं है, एज द केस में व्हाट यू सजेस्ट। उद्यम के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा। एक्चुअली करना एब्सोल्युटली बहुत करना जरूरी है। अब लोग बोलते हैं सर जहाँ तुम लोन में कन्वर्ट कर लोगे कंपनी एक्ट की दूसरी प्रोविजन वो लोग एक और चीज है, काफी नॉन चार्टर्ड लोग है ना, इंडस्ट्री से लोग हैं बहुत सारे, तो लोगों का सब जगह प्रोग्राम में कभी भी जाते हैं तो कहते हैं सीए लोगों के बहुत मजे है, क्या ना जीएसटी आने से बहुत फायदा हुआ है, ये आने से बहुत फायदा हो गया, ये इनकम टैक्स का कानून आ रहा है, बहुत फायदे हो रहे हैं, हम तो अनिल भैया को बोल बोल के सब थक गए कि कोई दूसरी लाइन बता दो, हमने छोड़ के आपके साथ लगा के बिजनेस में कहीं पे। तो अब क्या कंप्लायंसेस है, अगर कोई भी चीज गलती से भी रह जाती है सीए से, तो सीए पे 10,000 रुपए का फाइन लगता है, और डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं आप कंप्लेंट फाइल कर दो अगर कोई सीए ने मिस रिपोर्टिंग की है तो देर आर दी कंप्लेंट। तो आप ये बोल जाइए कि हमारा सीए मान जाएगा, कोई नहीं मानने वाले आज की तारीख में। दुनिया तो में एक कंप्लेंट हो रही है, बहुत सारी कंप्लेंट भी हो रही है, सर हैज ऑलरेडी हैंडल्ड, कईयों सीए की कंप्लेंट सर हैज हैंडल्ड वेरी वेल, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। अब क्वेश्चन आता है जेन्युइन केस का क्या करोगे आप, मैंने माल परचेज किया, नेक्स्ट डे आग ही लग गई, पूरी की पूरी जल गया सब, किसी की डेथ हो गई, या ओनर है ओनर की डेथ हो गई, तो आप क्या करेंगे, है ना? और ऐसा कोई रीजनेबल कॉज है, मेरे अकाउंट से फ्रॉड हो गया, पूरा पैसा निकल गया, तो क्या करेंगे? जेन्युइन केसेस है, रीजनेबल केसेस है, तो ये 43BH नहीं लगेगा। देखिए इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे कानून है, बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं। मैंने एक 20,000 से ऊपर का तो लोन में कैश में नहीं ले सकता हूँ किसी से, मैंने सचिन से 1 लाख रुपए का लोन ले लिया कैश में, संडे था, मेरे को लेबर पेमेंट करने जरूरी थे, या लेबर अनरेस्ट हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता था, कोई इमरजेंसी आ रही है, मैंने ले लिया, देयर इज अ पेनल्टी, मैंने जितना लोन कैश में लिया उतनी मेरे को पेनल्टी लग सकती है, लेकिन वहां प्रोविजन दिया है रीजनेबल कॉज, तो वो रीजनेबल कॉज जो है ना वहां पे पेनल्टी नहीं लगती है। ऐसे कुछ कुछ प्रोविजन है, लेकिन ये जो प्रोविजन है ना, यहाँ कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, कोई जेन्युइन केसेस नहीं है, यानी अगर आपने कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने पेमेंट नहीं किया तो डिसअलाउंस आपका होना, ये नो वन कैन स्टॉप इट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है पेमेंट करने का, आई नो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सिर्फ 5 मिनट में कवर अप करता हूं इसको। अब क्या पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट का मतलब ये होता है कि मेरे को मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाना चाहिए, या मैंने चेक इश्यू कर दिया, मैंने 1 करोड़ का माल परचेज किया 31 मार्च को, या मैंने फॉर दैट मैटर 16 मार्च को मैंने परचेज किया, 31 मार्च को इनको चेक दे दिया, इन्होंने चेक नहीं डाला, वो 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने में कभी भी डाले या नहीं डाला, फिर बाद में मेरे पास में चेक, मेरे को वापिस दे दीजिए, मैंने फिर चेक बना के दे दिया, उसने डाला नहीं डाला ये इनका मैटर है, मेरा तो मैटर नहीं है। तो क्या मैंने चेक दे दिया तो विल दैट अमाउंट टू पेमेंट? नो। हितेश भाई रिसीव करके चेक ले लो, यानी अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ले लो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है आपने पेमेंट दे दिया, यानी आपने चेक इशू कर दिया, आपका पेमेंट हो गया, क्योंकि देयर इज अ सेपरेट एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसमें पेनल्टी लगा सकते हैं। लेकिन बैंक में बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मेरा करंट अकाउंट है और मैं उसको उसमें मेरा ओडी दिखा रहा हूँ बुक्स में, सर हो जाएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पर वो एक डिस्प्यूट रह सकता है, जैसे भी बैलेंस करना है। अब इशू क्या आएगा, मैंने पूरे साल भर में तो इनको आरटीजीएस के पूरे गांव में सबको आरटीजीएस के, और 31 मार्च 30 मार्च 15 मार्च के बीच में सिर्फ चेक इशू कर रहा हूं मैं,
सर्कमस्टेंसेस क्या बोलते हैं, वो चेक क्लियर नहीं हो रहा है। देखो आप जो चाहे वो कर लीजिए, बिफोर ऑडिट भी तो आपका ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, पेमेंट हुआ कि नहीं बैंक से। सब ठीक, चेक तो दिया हुआ है, एक चीज है चेक दिया हुआ है। अब देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आप जितने भी केसेस करते हो ना, कभी पेनी स्टॉक का मैटर होता है, कभी डमी कमीशन एक्सपेंसेस का मैटर होता है ना, सब पेमेंट चेक से जाते हैं, बिल आता है, सामने वाले की रिसीप्ट आती है, पूरे पेमेंट तो सब होते हैं, बराबर होता है सब जगह, फिर भी डिसल होते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा हथियार है, 2 लाइन का हथियार है, सिर्फ उनको एक ही चीज लिखना है, कलरेबल डिवाइस। पूरे साल भर चेक से पेमेंट कर रहे हैं, आरटीजीएस पेमेंट करते हैं, और ये चेक इशू कर रहे हैं इस चीज का। ठीक है, तो वो लॉजिक से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है कि ये सर्कमस्टेंसेस प्रिवेल करते हैं, ये प्रिवेल करते हैं, जो बताता है कि पेमेंट का सिर्फ एक्सेप्शन मारा गया, एक्चुअली पेमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये हमेशा होगा कि कलरेबल डिवाइस यूज होगा, बट इट्स अ गुड केस फॉर वी पीपल टू फाइट द केस। जब भी कभी होगा तो हम फाइट कर लेंगे, लेकिन ऑनेस्टली बोलो तो बेटर है अगर पेमेंट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है। लेकिन सॉल्यूशन है चेक क्लियर कर लेते हैं, अनिल ने बोला अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अगर प्रूव करते हैं तो बेटर रहेगा। इसलिए ज्यादा बेटर है अगर चेक भी इशू करते हैं तो वो चल जाता है, बाद में क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर, वो एस्टेब्लिश करेगा पूरा फैक्ट। अब क्या करने वाले हैं लोग, पूरे मार्च महीने की पूरी चेक की चेकबुक ही छोड़ने वाले हैं ये लोग है ना। तो वो चेक अब कैसे छोड़ेंगे, मेरे 1 से 100 तक के हैं, 1 से 15 तक का चेक मेरा ऑलरेडी यूज हो गया था, तो मैं क्या कहूंगा 16 नंबर का जब मैं मई जून महीने में वो चेक दूंगा, अब फिर 17 नंबर का मैं पुराने तारीख के बिल वो चेक रहेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो लॉजिक यानी बहुत सारी चीजें दिमाग, मैंने बोले ना वो कई बार अक्कल के लिए मैनेज माइंड कई बार ऐसा रहता है, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है कि आपको अप्लाई मतलब करनी जरूरी थी। अब क्या बिजनेस प्रैक्टिसेस बहुत सारे टाइप की होती है, कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर में बिजनेस प्रैक्टिस प्रिवेल करती है कि भैया माल रख दो, 10 लाख रुपए का माल रख दो, बिकेगा तो पेमेंट देंगे, नहीं बिकेगा तो नहीं देंगे, कैश ऑन सेल्स। ये केस में क्या होगा, मेरा तो माल बिकेगा, डिपार्टमेंटल स्टोर से मेरे पास 50 कंपनियां हैं जो अपना माल रखती है, मेरा एक अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर गारमेंट्स का भी बना के रखा है मैंने, पूरा का पूरा माल सबने रखा है अपना माल, जब बिकेगा तो ले लीजिए, नहीं बिका तो माल आपका पड़ेगा। माल आ जाएगा, बिल रेस करेगा तो बात क्या? जितने का माल बिका उतना बिल रेस करो। नहीं जितने का बिल रेस करेगा उतना इशू है। से बराबर है, एक्चुअली बात बराबर है, अगर वो वहां से वो बिल इशू करता है तब तो ठीक है। कुछ जगह पे ऐसा है कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से पहले बिल रेस कर देते हैं, फिर माल लेके जाते हैं तब वापस देते हैं। इस केस में 43BH विल बी एप्लीकेबल, अगर उनका खुद का काउंटर है और जब जब बिकता है तब तक वो बिल अगर इशू करते हैं, इन दैट केस इट्स अ गुड केस। तो बिजनेस प्रैक्टिसेस कई बार रिडिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब एक आता है कि मेरे को माल का पेमेंट तो देना है, लेकिन वो सेलर जो था बेचने वाला वही अब्सकॉन्ड हो गया, भाग गया वो, तो मैं पेमेंट कैसे दूंगा, भी रेडी डिसअलाउ से होने वाला है। 100 रुपए की जगह 30 रुपए देना पड़ेगा आपको। ठीक है, पार्ट हो गया, लेकिन वो आएगा 2 साल बाद में आता है ना, 1 साल बाद में के लिए देने के लिए नहीं आएगा, लेने के लिए तो जरूर आता है आदमी। कंसाइनमेंट करने क्या? हाँ सर, कंसाइनमेंट सेल किया, अपना सेल नहीं है, इट इज सेल ऑन कंसाइनमेंट। यस सर। सर इट विल नॉट मे नॉट बी, क्योंकि वो सेल एक्चुअली तो हुआ नहीं है, एक्चुअली पूरा पार्ट ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो डिपार्टमेंट स्टोर को बोला ना, फिर सेल ऑन कंसाइनमेंट। सेल ऑन कंसाइनमेंट। अगर आपका पेबल खड़ा हो गया तो दैट विल एक्चुअली अकाउंटिंग कैसे होती है वो बहुत सारी चीजें मैटर कर जाते हैं। एक नेक्स्ट इश्यू देखते हैं हम लोग, एक मैंने बिल किया किसी ने 31 मार्च, 90% केसेस के अंदर में कंसाइनमेंट सेल की अकाउंटिंग होती ही नहीं। हाँ, क्योंकि हमने बोला रिटर्न में कि सेल ऑन कंसाइनमेंट। सेल अगर करना चाहे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग अगर कर ले तो नहीं होगा। सर एक बस इसको जस्ट रैप अप द थिंग्स नाउ। एक है मैंने 31 मार्च सचिन ने मेरे को माल बेचा, 31 मार्च 2024 को बेचा, मेरे को डिलीवरी 1 अप्रैल को मिली है, मैंने बुक्स में जीएसटी के लिए सब पर्पस के लिए तो 31 मार्च को रिकॉर्ड करता हूँ, डिलीवरी 1 अप्रैल को ही है मेरी, और मैं 31 मार्च में मेरे बुक्स में तो क्रेडिटर्स दिख रहा है, लेकिन मैं पेमेंट तो 15 दिन में नहीं कर रहा हूँ उसका। मेरे को क्या 15 दिन में करना जरूरी है ऐसे केस में? नहीं, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स है ना 15 दिन वहां से काउंटिंग होती है। अगर मैंने इस केस में पेमेंट नहीं भी किया, मेरी जो 15 दिन काउंट होंगे वो 1 तारीख से होंगे, यानी मैंने 16 तारीख को भी पेमेंट किया, वो नेक्स्ट ईयर का पार्ट है, इस साल का। उसके दूसरे रेपरकेशन सर जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, एब्सोल्युटली सर, that will be allowed only when Yeah. you receive the goods. यानी कहीं ना कहीं बहुत सारी रिप्रिकॉशन साइमल्टेनियस इंटरप्ले बिटवीन दिस टू एक्ट्स आर गोइंग टू बी देयर। अब बहुत सारे केसेस हम लोगों के पास में आते हैं, बहुत पर्टिकुलर मेटिकुलस लोग भी बहुत है, वो अप्रैल में आ जाएंगे, हमारा रिटर्न भरना है, हमारा ऑडिट कराना है, तो क्या करेंगे आप एज एन ऑडिटर?
या ऐसा आप क्या करेंगे, जब मेरे पास कोई ऑडिट आए 1 अप्रैल 2 अप्रैल को बुक्स क्लोज करके ला लिया, ऑडिट करो, यानी एक्चुअली होता है, खास करके बैंक ऑडिट में तो जुल्फे अपने साथ में होता ही है कि बैंक ऑडिट हम लोग 5 अप्रैल 10 अप्रैल को फाइनल करके साइन करते हैं, 3CD रिपोर्ट भी साइन करके देना होता है उनको। उस केस में क्या करेंगे, 43B(H) का तो टाइम ही एक्सपायर होने का है उसका, तो उसमें कहीं ना कहीं रिमार्क्स डालना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू दैट कि ऑडिट करते समय तक वो डेट एक्सपायर नहीं है, दे आर अनेबल टू कमेंट ऑन दैट पार्ट, ये करना बहुत जरूरी हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब एक छोटा सा था, अनिल भैया बाद में उस चीज को देखेंगे, वो बताएंगे कि MSME एक्ट में, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने MSME एक्ट में रजिस्टर ही नहीं किया, तो वैसा क्या मेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? मेरा व्यू है MSME एक्ट का सेक्शन 8 बोलता है यू हैव टू रजिस्टर, ठीक है, तो यानी अगर कोई वॉलंटरीली रजिस्टर नहीं करता तो चलता है क्या? तो मेरे व्यूज में नहीं चलता है, कोई कमेंट्रीज कोई ओपिनियन और नहीं मिली, लेकिन सेक्शन 8 बोलता है एवरी पर्सन शैल who intend मतलब who intend to set up a manufacturing process है, ये करना है तो उसको he has to register, तो मेरे हिसाब से कंपलसरी है ऐसे केसेस में। अब लेटर तो देखिए, अब सिर्फ एक्शन पॉइंट्स है, आपको 31 मार्च के पहले क्या क्या कर लेना है, सिर्फ ये कुछ पॉइंटर्स है वो बता देता हूँ कि आपको सप्लायर अगर ट्रेडर्स है तो उसका लेटर लेके रख लीजिए आप अपने हाथ पास में, ठीक है, और मैं ये पीपीटी शेयर भी कर दूंगा, अपने वेबसाइट पे भी दे देंगे, जितने मेल आईडी आप नोट करा लीजिएगा, तो राजेश कैन मेल कर देना, तो ये पूरे एक्शन पॉइंट सब में आ जाएंगे कि अगर कोई सप्लायर ट्रेडर्स है तो उसका कंफर्मेशन ले लीजिए, लेटर ले लीजिए, 45 दिन में पेमेंट करने तो उसके लेटर सब लेके अपने पास रख लीजिए, जो खास करके 31 मार्च 2024 में बाकी है, तो एक कंफर्मेशन 45 दिन या 60 दिन जो पेमेंट टर्म्स का उसका लेटर लेके रख लीजिए, अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे और ऑब्जेक्शन रेज करना है तो राइटिंग में लेटर बना के रख लीजिए उसका, चेक जो है 31 मार्च के पहले इश्यू कर दीजिएगा, ऑलरेडी टाइम ओवर हो गया है तो, अगर कोई जनरल एंट्री पास करके पेमेंट करना है तो उसके एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट साइन करवा के रख लीजिए आप उसके। एक जो सर ने कहा था, अशोक जांगिड़ सर ने भी कहा था कि MSME में जितने कॉर्पोरेट्स है वो MSME में उनको एक रिटर्न फाइल करना जरूरी है, हाफ ईयरली, कि आपका MSME का कितने ड्यूज बाकी है वो एक फाइल करना जरूरी है, तो वी नीड टू फाइल विद दैट। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हो गया अपने देने वाली बात, जो आपको लेना है उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, फालतू आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तो पेमेंट जल्दी कर दीजिए। एक वो भी इश्यूज के लोगों के दोनों जगह बहुत निगेटिव है बहुत पॉजिटिव है, दोनों व्यूज आ रहे थे, तो द पॉजिटिव साइड इज आल्सो देयर कि आप उसको रिकॉरिकुलर लेटर दीजिए, ट्रेडर्स अगर है तो उनको तो MSME लागू नहीं हो रहा, तो उनको लोग पेमेंट नहीं करेंगे, तो अपनी कैटेगरी अपडेट करके ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स भी कर दीजिए, कुछ सर्विस का भी काम कर लीजिए, तो वो कवर हो जाएगा। 15/2 को आप एक बार लिस्ट पूरी रिव्यू कर लेना कि 15/2 का जो टाइम है वो तो आपको पूरा क्लियर करना जरूरी है, 31 मार्च के पहले तो वो उस फाइनेंशियल में होना जरूरी है, वो चेक कर लीजिए। देन अगेन आप 15 फरवरी के बाद में जो भी परचेस करते हैं जो भी काम करते हैं उसके पेमेंट आप इंश्योर कर लीजिए कि वो एग्रीड पेड 15 दिन और 45 दिन में वो पार्ट आप कवर कर ले। फ्रेंड्स टॉपिक लंबा है, 3 घंटे भी हम ये 3 लाइन पे बोलेंगे तो भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। मैंने मेरे हिसाब से जितने प्रोबेबल इश्यूज थे, जो लिटिगेशन आ सकते थे, जो चांसेस थे कि जो इफेक्ट कर सकते हैं, आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग ए पेशेंस हियरिंग। थैंक यू ऑल। थैंक यू। Thank you, Naresh Bhaiya. There seems to be very lot many questions are going to fired. Please chat discussion होगा। But few things I like to share that being a practitioner in GST, sometimes what government is thinking, their annual information statement of tax information statement, what which is commonly known as AIS and TIS, are being available for all the assessees, and in which the assessees who are registered under GST, the purchase information is also available. Chandak sir is here, Naresh Bhai is here, everyone is here. I think there might be a day when we have to write the date on which we have made payment for the purchases under AIS or TIS. which जो non auditor assessee उनको भी cover up हो जाए, it might be a day which we can think of that. There are sometimes कि आप GST में ITC कब ले रहे हैं, that is also important day कि आपने ITC तो 3B में या R1 में ले लिया, 3B में आप ITC ले चुके हो, but you are not booked in your books of accounts to escape the 43A. That might be a case, मतलब there may be n number of questions. So I will request you all to come up with the questions, and Naresh Bhai is here to answer. Let it be one by one. Anyone who can. अभी का जो बोला था 31 मार्च तो पहले हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। अरे प्लीज। हाँ सर, जो 45 डेज का जो है अभी आप बोले 31 मार्च 24 के पहले इस साल का
मान लो उसने May 23 में भी परचेज किया है और अभी कर देता है March 23 तक तो अलग होगा। यस सर। तो लेकिन 45 डेज वाला जो क्लॉज है वो अगले साल से फिर रहेगा कि वो नहीं, उसमें क्या किया, एक एक्सेप्शन से ये किया है, आपको नॉर्मली 15 दिन एग्रीड पेड 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट करना है, लेकिन एक एक्सेप्शन उसमें दिया 43 BH में प्रोविजो दे दिया कि आपने लेकिन 31 मार्च 2026 को भी दे दिया, लेट दे रहे हो लेकिन 31 मार्च 31 मार्च तक अगर दे देते हो तो आपका डिसअलाउंस नहीं होगा वाला, सेम ईयर में पेमेंट कर सेम ईयर में पेमेंट हो जाता है तो नहीं होगा। डिसअलाउंस होगा और अलाउ भी होगा उस हिसाब से, बिकॉज़ दैट इज वो जो चीज लाई है सर तो उसका पर्पज ही डिफीट हो रहा है। नहीं पर्पस डिफीट नहीं होगा। समझ लीजिए आपने मई 23 के अंदर में परचेस किया, 15 दिन में पेमेंट करना था, नहीं किया, आपको मंथली रिटर्न तो फाइल नहीं करना है, तो आपका डिसअलाउंस हो गया वो ऑलरेडी। अब दूसरा प्रोविजन उसके साथ में है कि इफ यू इट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट कब हुआ, 23-24 में ही हुआ, डिसअलाउंस भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, नलीफाई ऐसा उसको जो MSC के लिए हमने बोला वो पेमेंट वो प्रोविजन कॉन्ट्रा में हुई। पर्पज हो रहा है डिफीट पर्पज हो रहा है। इंटरेस्ट हो जाएगा, पेमेंट में कंप्लेंट करेगा तो कंप्लेंट तो 3000 केसेस पड़ी है। सेपरेट प्रोसीडिंग हो गई ना, वो नहीं मैं सेपरेट एक्ट। सेपरेट है, कोई इनकम टैक्स का इशू नहीं है। इनकम टैक्स का इशू नहीं है, इसमें इशू है। नहीं थोड़ा सा मोदी गवर्नमेंट है, थर्ड टेन्योर फिर आ रहे हैं, उसमें एक और प्रोविजन लाएंगे क्योंकि MSME एक्ट जो एक पार्ट अभी छूटा है ना, MSME एक्ट बोलता है कि आपको इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, यानी ये चॉइस नहीं है, मैंने इनसे माल परचेस किया और मैंने इनको इंटरेस्ट नहीं दिया, ये इन्होंने लिया नहीं है और इन्होंने भी बोला मैंने भी नहीं किया, मैंने पेमेंट नहीं किया क्योंकि इन्होंने भी मांगा नहीं, हमने म्यूचुअली एग्रीड थे तो इंटरेस्ट पे नहीं किया। अगली इसमें हो जाए इसको और थोड़ा अमेंडमेंट ला लेंगे और बोल देंगे भैया इंटरेस्ट पे करना जरूरी है और नहीं पे करते हो तो उसका पेनल्टी फाइन अलग लगाएंगे और ऑडिटर रिपोर्ट कर देना हमको। आज की डेट में ये इंटरेस्ट पेमेंट का कंपल्सरी नहीं है। नहीं सर मैं बताता हूँ एक्ट में कंपलसरी, सर इनकम टैक्स में नहीं है। एक्ट में कंपलसरी MSME एक्ट में जब आएगा कोई क्लेम करेगा हाँ तो बात बात अलग है, सर, क्लेम ही नहीं किया तो आएगा ही नहीं। तो बात अलग है। MSME एक्ट में क्लियर कट है कि आपको, यानी उसने ये नहीं बोला कि भैया वो सामने वाला म्यूचुअली डिसाइड करना, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट 3 टाइम्स द बैंक रेट नोटिफाइड बाय द RBI आपको इंटरेस्ट देना है, यानी शैल पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कंपलसरी है मेरे को देना। अब क्वेश्चन है कि उसमें क्या था, कुल जगह 3 सेक्शन में सिर्फ MSME एक्ट ने पेनल्टी लगाई हुई है, लेकिन इंटरेस्ट में पे नहीं करता तो मेरी पेनल्टी नहीं लगाई है मुझे अभी तक फिलहाल, ठीक है, तो इसलिए वो मैं नहीं पे किया तो उनको पेनल्टी नहीं लगेगी। हो सकता है आने वाले समय में वो सब MSME एक्ट को ला ले और वो पेनल्टी के भी क्लॉज ला ले। यानी एक्चुअली क्या हुआ, अगर सही मायने में देखा जाए ये जो एक्ट आया ना 43BH का अमेंडमेंट, ये कुछ नया नहीं था, सेक्शन MSME एक्ट तो पहले से था, रूल भी पहले से थे, इन्होंने सिर्फ 3 लाइन ऐड करके उसको इफेक्टिव और पावरफुल बना दिया। यानी इसके पहले भी बेनामी प्रॉपर्टी में भी ऐसा हुआ, इसमें भी ऐसा हुआ। अब वो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है अभी तक तो फिलहाल उसको कवर अप नहीं किया, हो सकता है इन डेज टू कम दे में डू द नीडफुल आल्सो। मोर क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन, अपना परचेज ऑर्डर में कंडीशन है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द मटेरियल सर, और 1 जुलाई को मटेरियल आया, एक्सेप्ट हुआ 20 जुलाई को, ठीक है, तो 30 डेज कब से चालू होगा? 20 जुलाई 20 जुलाई से 20 जुलाई से चालूंगा। GRN आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। हाँ, GRN आपकी GRN पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वो दैट इज हाँ, GRN डेट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन GRN। GRN तो उसी दिन बनेगी ना जिस रोज आपने एक्सेप्ट किया, उसके पहले तो GRN बनेगी। GRN पहले बन जाती है सर, उसमें ऐसे बनेगी। GRN बन जाएगी, नहीं GRN तो जितनी मटेरियल है उतनी बन जाती है, फिर इंस्पेक्शन में जाता है क्वालिटी में। एक छोटा सा करेक्शन था एक्चुअली, MSME एक्ट जो बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट तो सीधा MSME एक्ट को रेफर कर रहा है, MSME एक्ट बोलता है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोलता है, यानी वो एक्सेप्टेंस नहीं बोल रहा है कहीं पे भी। बट लेकिन क्या था, जो रिटर्न एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो आपका जो डिलीवरी ऑफ द गुड्स है दैट्स नॉट द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्सेप्ट जब क्या तभी वो डिलीवरी माना जा रहा है, इसलिए दैट प्रोविजन विल बी एक्सटेंडेड ऑन दैट बेसिस। आपका परचेस ऑर्डर उस साइड में आपने लिखना पड़ेगा, उसके अंदर में टर्म आपको डालनी पड़ेगी कि ऑन द डे व्हेन इट इज एक्सेप्टेड इट विल बी कंसीडर्ड। हाँ, वैसा ही परचेज ऑर्डर में कंडीशन वही है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द मटेरियल। लास्ट में भी विल बी ए डे डिलीवरी। हाँ, आराम से पूरे आराम से कवर अप करते अच्छा रहेगा। सर, आपने ये जो 31/3/2024 डेट बताई है,
तो ये सिर्फ इस साल के लिए लागू है, या अगर मैं 1/4/24 को परचेज किया पेमेंट 31 मार्च 25 तक कर देता हूँ? नहीं, हर साल के लिए। ये सिर्फ इलस्ट्रेशन 31 मार्च 2024 से क्या, क्योंकि वो आ रहा है ईयर आफ्टर ईयर इट विल बी एप्लीकेबल। मतलब करंट ईयर में भी एप्लीकेबल रहेगा। हाँ 23-24 से चालू हुआ, 24-25 25-26 onward। फरवरी 15 के पहले के भी, मतलब जनवरी 1 से फरवरी 15 तक के जो बिल्स रहेंगे वो 31 मार्च को क्लियर हो जाने चाहिए। यस each year yeah yes। नहीं 31 मार्च में नहीं, अगर 16 फरवरी का बिल है, मैं 14 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 14 फरवरी का अगर बिल है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च जो भी है ना, वो फॉर द ईयर जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 24 तक का रहेगा, उसका पेमेंट आपका क्लियर होना चाहिए विद इन ड्यू डेट, जो 15 दिन या 45 दिन का है पीरियड। उन्होंने एग्जांपल दिया ना कि 1 मार्च 2023 के पहले का अगर आउटस्टैंडिंग है तो एक अलग इशू है उसका, बट अगर इफ इट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर तो इट हैज टू बी क्लियर्ड एज पर प्रोविजन। यस ये इंटरेस्ट जो है ये अलाउडेबल रहेगा क्या? 3 टाइम्स देना पड़ता है। देखिए बहुत क्लियर है, एमएसएमई एक्ट में भी बोल दिया और इनकम टैक्स एक्ट में भी बोल दिया। एमएसएमई एक्ट के कारण आपको कोई भी इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। एंड सेकेंडली इफ दे डोंट क्लेम तो आपको प्रोविजन करना चाहिए फिर अकाउंट्स में। देखिए रूल तो जो बोलता है ना, वो इंटरेस्ट आपको पे करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो, नहीं प्रोवाइड करते हो, तो एमएसएमई एक्ट का तो वायलेशन है। अब हो सकता है मैं ये मेरे पे पेनल्टी नहीं है एक्चुअली देखा जाए, यानी जो रिसिपिएंट है ना या जो पे करने वाला अगर नहीं पे करता है तो पेनल्टी नहीं है, बट प्रैक्टिसेस जो बोलता है कि इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी, यानी मेरे पास चॉइस नहीं है। तो कॉर्पोरेट्स डू प्रोवाइड इट, कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। हाँ कोई करता नहीं है, लेकिन रूल बोलता है फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग द नॉलेज एक्चुअली ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है कि प्रोवाइड नहीं किया तो लिखना चाहिए। लिखना कंटीजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का रियल लाइबिलिटी अब एक्चुअली कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, दिपेश भाई सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, छांडे सर है, बगड़िया सर है। अब क्या हो गया, 2006 से कानून लागू हुआ है, जब ये पूरा कानून पड़ा है तब इसमें सेक्शन 22 है, वो बोलता है वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट के एमएसएमई को पेमेंट कितना देना बाकी था, कितना दिया, कितना ओवरड्यू है, कितना नहीं दिया, कितना ब्याज दिया, रिपोर्ट करना है। और कंपनी में फॉलो होता था, बाकी नहीं फॉलो सर काउंसिल करके है अंडर एमएसएमई एक्ट सर, कि आपने 45 डेज में पेमेंट नहीं किया तो यू कैन गो टू दैट काउंसिल। वो तो बोला ना उसे 3000 नहीं, आर्बिट्रेशन है बेसिकली, वहाँ 18% ब्याज देना है और उन्होंने सेटल कर दिया कि आप 6%, तो इन दैट केस देयर इज नो पेनल्टी। यस सर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर या एग्रीमेंट ऐसे ड्राफ्ट एनी चांस वी कैन हेल्प? कैसे सर, क्या चीज का स्पेसिफिक ऐसे ड्राफ्ट ऑर्डर टर्म्स या एग्रीमेंट? नहीं, मैंने कुछ चीजें मैंने ड्राफ्ट किया है, तो मैं आज वो जितने लोग यहाँ पे मेल को अपना मेल आईडी लिख देंगे राजेश, मेल खाते में बता दो, उसमें 3-4 लेटर ड्राफ्ट किया हुआ है। एक है कि वो सामने वाला कंफर्मेशन देते कि वो ट्रेडर्स है या वो स्मॉल और मैक्रो एंटरप्राइजेस नहीं है। दूसरा है कि मेरे को डिस्प्यूट्स है मेरे वो इसमें आइटम में, तो ये चीजें ऐसे 3-4 चीजें मैंने ड्राफ्ट करके रखी है, तो वो सबको शेयर कर देंगे आप अकॉर्डिंगली अपने इसमें। Whether you have a standard pro forma for a purchase to be placed by the company on a ऐसा नहीं है या सर एक मेरा क्वेश्चन है सर, 1 मार्च को 24 को मैंने गुड्स लिया ऑन द पेमेंट टर्म्स ऑफ 45 डेज, जिसका ड्यू आएगा मुझे 15 अप्रैल में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, 14 अप्रैल, तो मैंने 14 को देना चाहिए या आई कैन एक्सटेंड इट अप टू 31st ऑफ 20? बिल्कुल नहीं, वो तो 14 को ही देना 14 के पहले ही दे देना जरूरी है आपको। 31 मार्च 24 ये तो इस साल डिसल हो जाएगा और अगले साल अलग होगा आपको। 16 फरवरी तक आपने जितने परचेसेस किया ना, वो आप लेट लतीफ दे दो बिल्कुल, यानी वो 16 फरवरी तक 31 मार्च के पहले तो पूरे क्लियर कर देना। मार्च का ब्लैंकेट और 1 मार्च का जो ब्लैंकेट 16 फरवरी का 31 मार्च को दे दो, दिस इज नॉट ए ब्लैंकेट। पेमेंट टर्म किसी की 30 दिन होगी, किसी की 15 दिन होगी, कोई पेमेंट टर्म नहीं होंगी, वो अभी सबकी पेमेंट टर्म सबकी 45 होने वाली है। अगर वो फाइनेंस अगर उसमें उस साल में दे दिया तो डिसअलाउंस नहीं होगा, सिर्फ एक वो पार्ट है बस। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ड्यू डेट आ रहा उसका कब देना है?
अगले साल 14 अप्रैल को नहीं किया तो अगले साल 31 मार्च तक दे सकता हूँ क्या मैं? नहीं मैं बताता हूँ इनका क्वेश्चन क्या मैं बताता हूँ सबके काम का भी रहेगा कि मैंने सर मैंने परचेस किया 1 मार्च को परचेस किया है 14 अप्रैल तक मेरे को पेमेंट करना था मैंने फिर 14 अप्रैल को पेमेंट नहीं किया तो क्या मेरा इस साल में तो डिसर हो गया अब मैंने जो साल में पेमेंट करूंगा वो साल में अलूंगा अब मैं 15 को अप्रैल को करूँ या 31 मार्च को करूँ 2025 में एक ही बराबर है उस साल में अलूंगा इस साल में पेमेंट अभी 45 डेज का है। पेमेंट टर्म से एक क्वेश्चन ऑफ डिसअलाउंस उसी केस में आ रहा है जब आप पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हो 15 अप्रैल का ड्यू डेट है ना। ऑडिटर वेरीफाई करेगा ना। ऑडिटर वेरीफाई करेगा पेमेंट देखेगा यानी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है सिर्फ 31 मार्च तक की नहीं देखनी है अगले भी देखनी जरूरी है अगर 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है 30 सितंबर तक ही देखनी सर नहीं ना वो 15 मई तक का ही रहेगा सर 15 मई के बाद का अवेलेबल नहीं रहेगा How can we identify the dealer from MSME dealer? Purchase from the MSME dealer? दो चीजें हैं एक तो उसका बिल आता है तो बिल में उसने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर दिया Dealer have not mentioned the. अगर नहीं मेंशन किया तो उससे लेटर ले लीजिए अगर वो लेटर दे नहीं अगर उसने मेंशन नहीं किया ना तो वी कैन ऑलवेज प्रिज्यूम संजय भैया कि इट्स नॉट एन एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है ठीक है ये प्रिजम्पशन हो जाएगा और अगर लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग है The law has not adapted for the penalty. नहीं होता है लेकिन अगर लेटर लिखे रखे तो और बेटर हो जाएगा प्लीज सर अभी जैसे मेरे 400 क्या बोलते हैं मेरे सप्लायर मेरा एक कदम रिटेल शॉप है मैं 400 सप्लायर से माल लेता हूँ 400 के 400 बिल पे किसी का भी उद्यम नंबर नहीं लिखा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब मेरी है क्या कि मेरे को 400 सप्लायर से लेना है आप बहुत फॉर्चुनेट हो आप बता रहा हूँ मैं आपको कि आजकल नहीं तो लोग स्पेशल माल नहीं भी रजिस्टर तो भी एमएसएमई डाल के दे रहे हैं आप नहीं है ना मेंशन बहुत अच्छा है और एक इसके ज्वाइनिंग ये था अभी तो चलो मैं नहीं ले रहा हूँ लेकिन जब मैं सीए के पास मेरा डेटा लेके जाऊंगा तो सीए मेरे को बोलेगा क्या कि अभी आपको सबके लेना था ये आपका काम है इसीलिए मैं क्लियर बिल में प्रिंट नहीं है तो फिर जरूरत नहीं यानी बिल में अगर वो प्रिंट नहीं है तो मैं ये क्या बोलते हैं मेरा सवाल भी रिलेटेड ही है कि डू वी हैव टू सुमो टू टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम द पार्टी कि हम लोग को वेंडर रजिस्ट्रेशन आपके पास चाहिए सर नरेश जी ने आपको पहले ही कहा है कि आपको नॉर्मल कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जब आपकी स्क्रूटिनी असेसमेंट आएगी तो जो आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रूव कि जिससे आपने परचेस किया वो एमएसएमई नहीं था इसलिए आपने 45 दिन में पेमेंट नहीं किया था सर इन दैट केस व्हाट इफ वी हैव पेड मैंने अपना डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया है सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो मैंने क्या प्रिज्यूम करना चाहिए उसमें आपको यही प्रिज्यूम करने आपको वेरीफाई करने की जवाबदारी आपकी है प्रूव करने का वेरेवर यू क्लेम इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मैंने अपनी तरफ से मेल इनिशिएट कर दिया उससे कुछ नहीं होता है उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया उससे कुछ नहीं होता है आपको आपका लेना पड़ेगा उसके अंदर में पॉजिटिव जो आपको चाहिए है पॉजिटिव प्रूफ आपको चाहिए कि सामने वाला एमएसएमई नहीं है तभी इनकम टैक्स वाला आपको अलाउ करेगा अदरवाइज नहीं करेगा मैं आपकी बात समझ गया सर कि आप टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अस कि हमें उसको पे कर देना चाहिए मैं उसको हर तरीके से कम्युनिकेट कर रहा हूँ राइटिंग पोस्ट ईमेल एवरीथिंग इवन आफ्टर दैट इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉट प्रोवाइडिंग बिल में मेंशन नहीं कर in spite of that it is your responsibility to prove that he is not registered as a स्टैंडर्ड इस मामले में ऐसा हो सकता है एक मिनट आपको और भी बता दूं कि 2007 से लेके आज तक सारी कंपनियां जितनी भी कंपनियां हैं सारी कंपनियां अपने सप्लायर को लेटर लिख रही है कि कंफर्मेशन दो हमको आप एमएसएमई है या नहीं है बहुत सारे लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं बहुत सारे केस के अंदर में ये नहीं होता है पर आज देखिए ऑडिटर नॉर्मल कोर्स में जब रिपोर्ट करने का होता है तो ठीक है चलो आपके मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे मान लेता है कि भाई हमने सबको लेटर लिखा है जिन्होंने नहीं भेजा अपना नंबर हम समझ के चल रहे हैं कि एमएसएमई नहीं है ऑडिटर की कोई गलती नहीं होगी ऑडिटर वहां पे मान लेगा उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं है पर जब आप इनकम टैक्स ऑफिस में जाएंगे वो इनकम टैक्स ऑफिसर ये बोलेगा पुरानी कहावत है या तो फादर को दिखाओ नहीं तो उसका श्राद्ध करो कोई चीज हो गया
यानी बिल पे, यानी मैं इसको क्या बोलते समझ बिल लेता हूँ। बिल पे रहे नहीं रहे इसका कोई सवाल नहीं, इसलिए नरेश ने बोला है कि आप आपके सारे सप्लायर से पहले एक कम्युनिकेशन करके लेटर लीजिए कि वेदर ही इज रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई और नॉट, और ये पर्टिकुलरली लास्ट वीक में या एक महीना पहले 1 मार्च के अंदर में आप इनिशिएट करिए। आज आप देखेंगे सारी कंपनियां जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, मार्च के पहले हफ्ते में सबके लेटर शूट होते हैं सारे सप्लायर्स को, वेदर यू आर रजिस्टर्ड एज एमएसएमई और नॉट। और ये पिछले 10 साल से 12 साल से तो पक्का मैं देख रहा हूँ हो रहा है। एक्सक्यूज मी बस एक सेकंड, आप इसको क्वेश्चन पे क्वेश्चन जाएगा तो आर्गुमेंट में एक्चुअली एक सेकंड, तो स्टार्टिंग में एक चीज हुई थी कि आप अपने तरफ से जितना करना कर लीजिए, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके पूछेगा तो लॉ अलग ही तरीके से इंटरप्रेट होगा, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, और हम जो इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं कि आप वेरीफाइड हो या नहीं इसका स्टेटस प्रोवाइड करें, तो ये मेल मुझे हेल्प करेगा या नहीं करेगा? सर का कंटिन्यूअसली स्ट्रेस है कि पेपर प्रेजेंटेशन अपने स्ट्रॉन्ग मेंटेन करने हैं सो दैट वी कैन जस्टिफाई आवर केस इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटीज। इन दैट केस क्या ये मेल मुझे सब्सटेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि मैंने तो पूछा था उसने नहीं बताया? वो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। ओके ठीक है, एंड सेकंड केस में और कोई डिसाइड नहीं करती। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी आपको नहीं मिलेगा। उद्योग एंड उद्यम ये दो चीजें, कुछ लोग आज भी उद्योग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या उसको देखना है या इग्नोर करना, बिकॉज इट वाज नॉट, इट वाज वैलिड टिल 22-23 ओनली, तो क्या आज उद्योग को इग्नोर करके चलना है कि एमएसएमई नहीं है या उद्यम नहीं है? माइग्रेशन आ गया सर, माइग्रेशन आ गया एक्चुअली 2021 में माइग्रेशन आ गया था, लेकिन मैंडेटरी हुआ नहीं है ना, तो लोगों का हर एक तो मैंडेटरी माइग्रेट किया नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? इश्यूज आर गोइंग विद मेरे हिसाब से तो उसको कंप्लायंस करना मतलब वो माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन माना ही जाएगा। मुझे ऐसे लगता है तो थोड़े डिस्प्यूटेड लिटिगेशंस के रहेंगे क्योंकि अपना ये कह रहा है कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसका कहना है कि रजिस्टर्ड में तो क्योंकि इसमें वाइस प्रेसिडेंट की वैलिड मैं जिनसे परचेस कर रहा हूँ मैंने उनका वो मटेरियल मैं किसी और को सप्लाई करता हूँ और सपोज उस व्यक्ति ने मुझे पेमेंट नहीं किया और मैं रजिस्टर्ड नहीं और सामने वाले व्यक्ति जिनसे मैंने परचेस किया वो रजिस्टर्ड है, तो क्या वो मेरे को डिसअलाउ होगा? मैं जिनसे परचेस कर रहा हूँ सेम मटेरियल मैंने किसी और को सप्लाई कर दिया, बट जिसको मैंने सप्लाई किया वहां से मुझे पेमेंट नहीं आया और मुझे उसको विदिन 45 डेज में पेमेंट करना था, वो मैंने नहीं कर पाया, तो आपका डिसअलाउ होगा, आपका डिसअलाउ हो जाएगा, हमको कोई लेना या एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं सर ये जो पुराने चाय में वी आर हियर चाय साथ में लेते हैं। 31/3/2003 के पहले जिनके सर ये 31/3/2003 के पहले जिनके पेमेंट्स पेंडिंग है या ये है उनके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं? 31/3/2023 से पहले ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग स्पेशलाइज्ड है, जो भैया सर ने कहा था कुछ लोग के एमएसएमई एक्ट में काम करते हैं आपके पैसे निकालने का, कि वो एमएसएमई एक्ट में कंप्लेंट फाइल करके यू कैन रिकवर द अमाउंट। तो कितना पीरियड कितने पीछे तक के जा सकते हैं? 3 साल तो कम से कम जा सकते हैं। लिमिटेशन पीरियड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद चाय पे है हम लोग के साथ डिस्कशन। यस सर, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस एक्चुअली। जैसे मान लेते हैं कि इंटरप्राइजेस नाम से फर्म है, सेम पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म है, उस दोनों से अपन परचेस कर रहे हैं, तो एक में ज्यादा पेमेंट करके रखा हुआ है और एक में कम पेमेंट हुआ है, तो उसको जेबी के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं क्या? राइटिंग लेटर वगैरह स्ट्रॉन्ग बना के रख लीजिए, चल जाएगा। सामने वाला भी वैसे ही रिकॉर्ड कर ले। हाँ, सामने वाले से लेटर चाहिए। यस अदर पार्टी जैसे इसमें लिखा है वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 45 डेज। मैंने सप्लाई किया अगेंस्ट एलसी फॉर 90 डेज और सामने वाले ने एलसी इमीडिएटली डिस्काउंट कर लिया, तो उसको तो पेमेंट कर दिया। एलसी वाज फॉर 90 डेज, इट इज नॉट अलाउड, बट हियर डिस्काउंटेड द एलसी सेम डे या नेक्स्ट डे, तो उसको तो पेमेंट 40 विदिन सेकंड। सर मेरे को लगता है ऐसे केस में ना, एक जब मैंने एलसी इशू कर दिया तो मैंने तो टेंडर अमाउंट टू पेमेंट ओनली, इट्स अ बैंकर्स लायबिलिटी कन्वर्ट होगी, वो तो यानी बैंकर्स पे करेगा। हां वही बोल रहा हूं, दैट मींस इफ आई फॉर The day when you have opened the LC, that is a due payment. सेकंड क्वेश्चन, सपोज मेरा रजिस्ट्रेशन दिस ऑन मैन्युफैक्चर का प्लास्टिक है और मैंने आपको पेपर सेल दिया, तो व्हेन आई वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन वो प्लास्टिक
क्या राजेश पहले टिम्बर सप्लाई किया ना क्या बोलते हैं कि कुछ भी सप्लाई किया मैंने जो रजिस्टर्ड है लायबिलिटी आपको Yes. मैंने verified that registration it is not possible मैंने टिम्बर सप्लाई किया मगर सेट से प्रोसेस फॉर या देखो सरकार बड़ा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है कि एक ने मैन्युफैक्चरर प्लास्टिक इंडस्ट्री में था और सप्लाई टिम्बर कर रहा है। अब एक्चुअली एक्ट जो बोल रहे हैं ना एमएसएमई को कोई भी पेमेंट करना माइक्रो स्मॉल को कोई भी पेमेंट करना आई हैव टू मेक द पेमेंट विद इन ड्यू डेट नहीं तो 43 बीएच में डिसअलाउड हो जाएगा। तो अब उसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला कि वो जो सप्लाई कर रहा है दैट फॉर दैट आइटम ओनली यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो बोला गया है एक्टिविटी ओनली not beyond the extent for all products एक्ट में मैं तो ट्रेडिंग में कर रहा हूँ ना कोई आइटम का टेक्निकल इंटरप्रिटेशन में देखा जाए माइक्रो और स्मॉल का पैसा मैंने नहीं रोकना है वो कुछ भी चीज का पेमेंट मांगे ऐसा कैसे हो सकता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए सर्विसेज ने हम ट्रेड में टिम्बर मटेरियल सप्लाई कर दिया पर मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक के बीच में रजिस्टर्ड है थोड़ी तो सर डिस्प्यूट लिटिगेशन रहेंगे तो लिटिगेशन प्रैक्टिस भी चलती है एक्चुअली और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज साथ में ये भी है कि जो हम जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं तो अपने को कंपनी में एडिट लॉग भी देखना है कि हम वो एंट्री 30 सितंबर को नहीं कर रहे हैं। एडिट लॉग कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम इशू होने वाली है थैंक यू नरेश जी आपने तो काफी इंफॉर्मेशन शेयर की लेकिन इंफॉर्मेशन शेयर करने के अलावा हमको डरा भी बहुत ज्यादा दिया कराने पड़ेगा इतना बात पक्की है एक चीज समझना है सारा पेमेंट पहले कर दो। So before we conclude today's event, I would like to recall, Naresh ji had sent me a message on 31st March 23. WhatsApp पर एक मैसेज भेजा था उन्होंने मेरे को। Let's listen क्या कह रहे थे वो। न्यू फाइनेंशियल ईयर का विश कर रहे थे मुझे। For the year ended 31st March 23 and for all the further financial years to come, may your receivables always exceed your payables. Now that this new provision has come, I think you will change the code to say your receivable, you may have receivables but have no payables. On behalf of VIA, I would like to thank VIA Taxation and Corporate Law Forum. Thank you Naresh Jakotia ji, Anil Parak ji, Ashok Chandak ji, Sachin Jajodia ji, and Bagadia ji. Today's presentation will be available on VIA's website for you to refer. For any further query, please do contact us. Thank you so much. Thank you for coming. It's just a class announcement. In the first week of March, we will be having a program, annual program of Vidarbha Industries Association, Making March Meaningful. It appears to be making February useful, and again a Making March Useful program will be there. Thank you.